Okay, so this is learning module 12, equity learning module 12, as in chapter 12, first class. So when I started equity, I said that there are 12 learning modules. We started with the fourth one, which was returns. This chapter, learning module 12, is also on returns, but in a sophisticated sense. So उस दिन ही मैंने पाथ बताया था कि how are we going to approach equity, because otherwise equity का जो write-up दिया हुआ है first chapter में what is equity, what are shares, that becomes very boring. So we didn't start it chronologically LM1, LM2, LM3. हमने start किया था LM4 से, जहाँ पे returns are price returns, capital distribution, ठीक है, dividend buyback, ex dividend date, ठीक है, ये सारा आपने किए थे LM नंबर 4 में. And this chapter is LM number 10. Look at the name of the chapter on the board. Screen देखो. Capital asset pricing model, CAPM, comma market model and other factor-based equity models. So you may write the heading of the chapter. ये LM 10 है, and this is the name. LM 12, sorry, LM 12 and this is the name. नाम लिख लो, थोड़ा सा दोस्ती नाम से ही हो जाए. कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, कॉमा मार्केट मॉडल एंड अदर फैक्टर बेस्ड इक्विटी मॉडल्स. Since we are doing it towards the beginning of this batch, because of which we are going to take heavy time, because a rush would be bad. Okay, very good chapter, very conceptual chapter. Capital asset pricing model, market model and other factor-based equity models. Okay, discuss करते हैं. Screen दिखा दो, full screen. What is a capital asset? Discussion हो रहा है. What is a capital asset? उसका जवाब है, a capital asset is an asset which is going to generate future cash flows. What is a capital asset? A capital asset is an asset which will generate future cash flows. So stock, when equity is a capital asset, of course if you buy equity, you will get future cash flows in the form of dividend and in the form of the price at which you will sell. Even bond is a capital asset because you will get future coupons, that is coupons means regular interest and then redemption. Real estate is a capital asset. If you own real estate, you can put it out on rent, you will get a series of rent and then you will sell it off. Okay, a commodity is not a capital asset. Gold is not a capital asset. Cryptocurrency is not a capital asset. Art objects and paintings are not capital assets. Currency is not a capital asset because it will not generate future cash flows. Capital asset मतलब कोई भी चीज which is going to generate future cash flows. ठीक है? Of course, the focus is on equity. Stocks का बात हो रही है. ठीक है? पूरा का पूरा equity का module is trying to explain whether you should buy or sell a stock. बाइंग और सेलिंग को तीन कॉन्टेक्स्ट में देख सकते हैं. कॉन्टेक्स्ट नंबर 1, खुद का पैसा. मेरा खुद का पैसा है जो हम लगाने वाले हैं. कौन सा स्टॉक बाई करें, कौन सा स्टॉक सेल करें, उसके लिए दो चीज चाहिए. नंबर 1 पैसा, नंबर 2 स्किल्स. तो पैसा अभी है नहीं, सो देयरफॉर वी डोंट टॉक अबाउट खुद का पैसा टू मच. सेकेंड हो गया, वी वर्क इन अ बाई साइड फर्म. यू वर्क इन अ बाई साइड फर्म. सबसे बेस्ट एग्जाम्पल म्यूचुअल फंड. You work in a mutual fund as a fund manager. So mutual fund को कौन सा stocks buy करना चाहिए, that you have to decide. तीसरा हो गया sell side. मोतीलाल ओसवाल ICICI Securities. You work in a sell side firm where मोतीलाल ओसवाल Securities doesn't have to buy. It has to share research report with clients. Okay, आप लोग clients हो, आपके साथ research report
कि अकॉर्डिंग टू देम दिस स्टॉक इज अ बाय, दिस स्टॉक इज अ सेल, दिस स्टॉक इज अ होल्ड। तो तीन है, एक है खुद के पैसे से बाय करने वाला हूँ, एक है बाई साइड में काम कर रहा हूँ, बाई साइड। बाई साइड का मतलब ये नहीं कि जो लोग बाई करते हैं वो लोग सेल भी करते हैं। इट्स कॉल्ड बाई साइड बिकॉज उन लोग दूसरे को ज्ञान नहीं बांटते हैं कि लोग दिस इज द रिसर्च, ओके आप लोग को बाई करना चाहिए, वो ज्ञान नहीं बांट रहे, वो खुद ही मैनेज कर रहे हैं। एग्जाम्पल म्यूचुअल फंड। और सेल साइड जो है वो सेल नहीं कर रहे हैं, सेल साइड माने एक तरह से वो अपना रिसर्च सेल कर रहे हैं। क्या सेल कर रहे हैं? रिसर्च। तो लोगों को ज्ञान बांट रहे हैं कि देखो तुमको बाई करना चाहिए स्टॉक। और बहुत सारे सिचुएशंस में बाई साइड सेल साइड का बात होगा। अभी ये चैप्टर तो बाई साइड सेल साइड के बारे में है नहीं, तो आई कैन नॉट रेस्ट एंड इन्वेस्ट टाइम ओवर देयर। Okay, there are one or two guys who are facing some issues. Pulkit is saying screen is shattered. Yes, please, बताइएगा। आप लोग क्या अग्री करें पुलकित से? Is the screen shattered? पुलकित बोल रहा है और एक संभव जैन, अजय सिंह is saying all good. अजय सिंह खामपा is saying all good. Tell me the status, please. It's all good or something is wrong. Okay, I'm seeing the responses. So जो responses है, if there are 100 students doing the class, 90-92 के लिए it's okay. 5-7-8 students का problem हो रहा है, वो होगा ही हमेशा, ठीक है? तो लाइव क्लास का ये लिमिटेशन है कि 5-7 स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम होने वाला है, दो आई सिंपथाइज विद देम बट आई विल नॉट स्टॉप द क्लास फॉर देम, ठीक है? सो डोंट फील दैट आई एम बीइंग इगोइस्टिक एंड आई डोंट केयर, आई डू केयर बट हैज टू बी अ वेरी रियलिस्टिक डिसीजन। चलते आगे। सो आई वाज सेइंग समथिंग, आपको बाई साइड, सेल साइड और ओन इन्वेस्टिंग का डिफरेंस समझ में आया? इतना सा समझ में आना मतलब बहुत ज़्यादा अचीव कर लिया इन टर्म्स ऑफ नोइंग अबाउट फाइनेंशियल मार्केट्स। खुद का पैसा लगा रहे हैं, दैट्स ओन मनी, वो तो खुद का हो गया। बाई साइड मतलब ज्ञान दे रहे हैं या खुद मैनेज कर रहे हैं? खुद मैनेज कर रहे हैं बाई साइड। तो ऑल द म्यूचुअल फंड्स, हेज फंड्स, प्राइवेट इक्विटी गाइस, इंडिया में ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स, पीएमएस, ये लोग सब पैसा खुद मैनेज कर रहे, दूसरों को ज्ञान नहीं दे रहे, ठीक है? तो ऑफ कोर्स क्लाइंट्स को पास जा रहे हैं और बोल रहे हैं मेरे को पैसा मैनेज करने दीजिए, मैं आपका पैसा बहुत बढ़िया से मैनेज करूंगा। दैट इज बाई साइड। सेल साइड जो है ब्रोकरेज फर्म्स, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, कोटक सिक्योरिटीज, जेरोधा, और जेरोधा इज जीरो, तो बोलते हैं हम कुछ नहीं ज्ञान दे रहे हैं, हम केवल प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, आओ ट्रेडिंग करो, ग्रो, हम कुछ ज्ञान नहीं दे रहे, केवल प्लेटफॉर्म दे रहे, ट्रेडिंग करो, ठीक है? तभी तो जेरो बोलना चाह रहे हैं, गिव ज्ञान। यू कैन जस्ट यूज आवर प्लेटफॉर्म फॉर द पर्पस ऑफ क्या बोलते हैं, सीमलेस ट्रेडिंग। बट अदरवाइज जो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, कोटक सिक्योरिटीज, सारे ब्रोकरेज हाउसेज है, दे हैव इक्विटी रिसर्च आर्म जो लोगों को ज्ञान दे रहे हैं कि आप लोगों को कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है? तो पूरे के पूरे इक्विटी में This is the stuff where the discussion is about कि आपने को स्टॉक्स बाई करना चाहिए, सेल करना चाहिए, कौन सा। पूरा 12 चैप्टर्स ये बताना कोशिश कर रहे हैं, 12 चैप्टर्स, ठीक है? उसके लिए अपने को केवल एक ही चीज करना पड़ेगा, वैल्यूएशन। क्या? वैल्यूएशन कि स्टॉक का वैल्यू क्या होना चाहिए। स्टॉक का जो वैल्यूएशन होना चाहिए, वी कॉल इट IV0। क्या? IV0। जीरो माने आज, IV माने इंट्रिंसिक वैल्यू, ओके? इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द स्टॉक, the fundamental value of the stock। तो वो intrinsic value of the stock निकालना है। If it is according to you 720 and the stock is trading at 420, we should buy। 720 आपके अनुसार उसका वैल्यू है और 420 पे चल रहा है, तो आपको बाई कर लेना चाहिए, ठीक है? तो क्या श्योर है आपको फायदा होगा? श्योर तो कुछ भी नहीं है, बिकॉज 720 was based on several assumptions and several models, ठीक है? तो देयर आर subjectivity, therefore no clear cut. So what is the program teaching us? How do you take logical assumptions, how do you take logical analysis, and such that you may be wrong in one or two instances but on an average you will be correct। अगर आप 20 स्टॉक को हाथ लगाते हो तो काश 20 में से 12, 13, 14 स्टॉक आपने सही चुना, 7-8 स्टॉक जो है they were out of your control, ठीक है? डाइवर्सिफिकेशन, understood? That's the humility with which we approach markets। Nobody is teaching a secret sauce, बस ये कर लिया तो बस हो गया, कुछ नहीं, ठीक है? तो अपने को वैल्यूएशन करना है। क्या करना है? वैल्यूएशन, ठीक है? मैं लिखाना 2 मिनट बाद स्टार्ट करूंगा बिकॉज दैट विल चेंज द रिदम ऑफ माय डिस्कशन। वैल्यूएशन में लेट्स सपोज आप 2 एसेट्स का वैल्यू कर रहे हो, एसेट ए, एसेट बी,
Asset A is going to pay 500, 500, 500, 500, 500, 500 5 बार. Nothing great to digest. आप समझ पा रहे हो? 500, 500 5 बार आएगा, टोटल 2500 आएगा. Asset B is going to pay 100, 100, 100, 100 4 बार, लास्ट में 2100. 100, 100, 100, 100 4 बार, लास्ट में 2100. Asset A will pay 500, 500, 500, 500, 500 5 बार. Asset B will pay 100, 100, 100, 100 4 बार और लास्ट में 2100. Both the assets have the same risk. There is no difference in their risk. There is no any difference in the stock. They are Xerox copy of each other. The only difference is that one will pay 500, 500, 500, 500, 500. The other will pay 100, 100, 100, 100. Last में 2100, 2100. Which one, according to you, would you be ready to pay a higher amount? आप ज़्यादा amount पे उसको value करोगे? A या B? Which one would you like to invest a higher amount relatively in which stock? A या B? In that case, वहाँ पे भी और क्लास में भी the answer face to face में और live में दोनों में the answer is 90% या 95% ऑडियंस ने A बोला है, कुछ 5% ने बोला है B. जिन्होंने A बोला है उसका रीजन क्या है? टाइम वैल्यू ऑफ मनी. जिन्होंने A बोला है उसका रीजन है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, कि मिल रहा तो 2500 ही है, तो पैसा पहले मिले तो बढ़िया ना. पैसा पहले मिले तो बढ़िया, ठीक है. तो अगर कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होता, टाइम वैल्यू मनी नहीं होता, और इन दैट केस द फीस दैट यू पेड मी, यू वुड लाइक टू पे अपफ्रंट और यू वुड लाइक टू पे इन इंस्टॉलमेंट्स. यू नो टाइम वैल्यू मनी, आपको पता है. जाता है तो देरी से जाए, आता है तो जल्दी है. तो 500 500 500 500 में तो जल्दी पैसा आ रहा है ना. 100 100 100 100 में तो आ रहा ही नहीं. ऑब्वियसली देयर इज नो डाउट अबाउट इट, ठीक है. तो एंड आई डोंट नीड टू ओवर स्ट्रेच द सेम. तो इन दैट केस इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ अ स्टॉक, जिसको भी प्रॉब्लम हो रहा है वो प्लीज क्लास को छोड़ दे, लाइव क्लास को, वो वीडियो क्लास करे बाद में, ठीक है. और स्टाफ से डील करे, ठीक है. बिकॉज अभी मैं क्लास बंद करने वाला हूं नहीं कोई भी हालत में, ठीक है. बिकॉज वहां पे सब जन का जवाब आ रहा है, एवरीबॉडी इज रिप्लाइंग, इसका मतलब एवरीथिंग इज स्मूथ, ठीक है. तो ओके, तो आपको टाइम वैल्यू मनी समझ में आया. इन अदर वर्ड्स, आप ये जो दोनों एग्जांपल था एसेट ए एसेट बी, इसमें वुड यू लाइक टू पे ऑप्शन नंबर 1 लेस देन 2500, ऑप्शन नंबर 2 2500, ऑप्शन नंबर 3 मोर देन 2500. ओके, दोनों स्टॉक जो था ना ए और बी, उस पे यू वुड लाइक टू पे ऑप्शन नंबर 1 लेस देन 2500 देना चाहेंगे, या 2500 या 2500 से ज्यादा. 2500 से कम, दिस शुड बी मोस्ट नेचुरल, कि बाद में आने वाले 2500 मार्क्स तो कम ही देंगे ना. वो जो कम देंगे वही तो प्रेजेंट वैल्यू होता है. एंड इट डजंट रिक्वायर दैट यू हैव बीन डूइंग क्लासेस फॉर 5 क्लासेस 10 क्लासेस आपका हो गया. ऑब्वियस है, if you invest less than 2500, then only you will earn some rate of return, then only you will earn some rate of return. तभी आपके रिटर्न आएगा घर पे, अदरवाइज तो रिटर्न आएगा नहीं घर पे. ओके, suppose for asset A you decide to pay 1800. How much? 1800. So in that case please calculate the return you will earn. Asset A याद है ना, 1800 आप देंगे और 500 500 5 बार आएगा. 1800 आप देंगे और 500 500 5 बार आएगा. स्क्रीन दिखाओ प्लीज. 1800 आप देंगे और 500 500 5 बार आएगा. क्या रिटर्न आया? 1800 मेरे घर से गया तो नेगेटिव पीवी. 1800 मेरे घर से गया तो नेगेटिव पीवी. यस, आप लोग का आंसर आ गया. मैं धीरे धीरे कर रहा हूं. मेरे पास 500 आएगा, वो तो एन्युटी है, तो दैट इज पीएमटी. कितने बार आएगा? 5 बार. 5 इज व्हाट? एन. सीपीटी आई बाय वाई. मेरा गलत आ रहा है बिकॉज मैंने क्लियर टीवीएम नहीं किया, और ऐसे भी मेरा ख्याल से पता नहीं क्या ऑपरेट होता है. सेकंड क्लियर टीवीएम फिर से कर रहा हूं. 1800 नेगेटिव इज व्हाट? पीवी. 500 is PMT. 5 is what? N. CPT I by Y. 12.05%. Yes. तो 12.05% आप लोग का भी आया होगा. 12.05%.
ठीक है, फेस टू फेस में जो कर रहे हैं उन लोगों को फायदा ये है कि अगर नहीं आ रहा है तो बगल से पूछ लो, कैलकुलेटर नहीं है तो बगल से देख लो, वो दोनों एटीट्यूड नहीं है तो हवा में सोचो मेरा भी आ रहा है। ठीक है, जो लोग लाइव है हो सकता है उन लोग का नहीं आ रहा होगा, कैल्सी में सेकंड क्लियर टीवीएम नहीं किए होंगे, ओके, सेकंड एफबी वाला बटन, बट अदरवाइज आ गए हैं, सबका यहाँ दिख रहा है, दीप, पुरुषोत्तम, आयुष, रॉबी, प्रियांशु, ठीक है, एंड एवरीबडी एल्स हुज नेम आई हैव नॉट टेकन। तो 12.05% you will earn if you pay 1800, if you pay what 1800, 1800, ठीक है। तो यूजुअली इट इज द ऑपोजिट वे आउट, बिकॉज हमें प्राइस नहीं, हमें इंट्रिंसिक वैल्यू चाहिए। यानी कि अगर तुमको कैलकुलेशन मत करना, बोलो एक बार, अगर तुम 14% अर्न करना चाहते हैं स्टॉक से, कितना 14, यू डोंट वांट टू अर्न 12.05, यू वांट टू अर्न व्हाट 14। डोंट कैलकुलेट, थिंक इन ऑर्डर फॉर यू टू अर्न 14%, जबकि ये 500 500 500 500 ही देगा, तो आपको 14% कमाना है, 12.05 नहीं, तो यू शुड बी पेइंग 1800 या 1800 से कम या 1800 से ज्यादा कम। 1800 दे रहे थे तो 12.05 आया, तो अगर मेरे को 14% रिटर्न कमाना है, आई विल पे लेस देन 1800 ना, बिकॉज 1800 पे तो नहीं आ पा रहा है। वो जो निकाल रहे हैं कि हम क्या देंगे, वो तो 14 के हेल्प से ही निकाल लो। अब 14 आई बाय वाई सीपीटी पीवी 1716 स्क्रीन दिख रहा है ना, 14 आई बाय वाई सीपीटी पीवी, तो इट्स कमिंग टू 1716.5, ओके 1716 आ रहा है, 1716 अज्यूम कर रहा हूं सबका आ रहा होगा 1716। तो सर अगर 1716 पे करेंगे तो जाके वी विल अर्न 14% रिटर्न, तो एक बात तो पक्का हो, अगर ये 1716 आंसर निकालना है तो इसके लिए दो डेटा चाहिए। नंबर 1 क्या आने वाला है, ऑब्वियसली क्या एंड कब आने वाला है, क्या एंड कब आने वाला है, कब इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी, क्या एंड कब आने वाला है उसका फोरकास्ट, एंड नंबर 2 कितना रिटर्न चाहिए, कितना रिटर्न चाहिए, बिकॉज 14% चाहिए तो 1716, 18% चाहिए तो 18 करो, 18% चाहिए तो 18 आई बाय वाई सीपीटी पीवी क्या 1563। अगर आपको 18% चाहिए तो 1563। मेरा पर्पस है ये बताना कि अगर तुम्हारे पास मैं 18 या 14 या नहीं बताऊं तो तुम कैसे आंसर निकालोगे, नहीं निकाल पाओगे ना। इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द आंसर यू नीड द कैश फ्लोज, you need the discount rate, you need the cash flows, you need the discount rate. It is called the discount rate because उस रेट के कारण 2500 फूल गया कि 2500 सुस गया ना, वो जो 2500 था वो सुस गया, it got discounted to 1516. We call it discount rate because it discounts the future cash flows, therefore called discount rate. ठीक है, तो in order to find out the intrinsic value of an asset, of a capital asset, फिर से start, what is a capital asset? That which generates future cash flows. ठीक है, currency is not a capital asset, ठीक है, commodity is not a capital asset, okay, ones which generate future cash flows, that's a capital asset. Somebody is asking derivative is not a capital asset, okay, derivative is not that way a capital asset, it's priced in a different way, ठीक है। तो कैपिटल एसेट माने स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स एंड रियल एस्टेट, ऑल दीज आर कैपिटल एसेट्स, सो दे विल जनरेट सम कैश फ्लोस। सबसे बड़ा तुम्हारा दम निकलेगा, दम रियल लाइफ में, फ्यूचर में, ये पता लगाने में कि इट इज गोइंग टू जनरेट व्हाट कैश फ्लोस, बिकॉज तुम अपने बारे में बता दो ना, व्हाट कैश फ्लोस आर यू गोइंग टू जनरेट लेटर। छोड़ो दुनिया को, रिलायंस, इन्फोसिस सबको छोड़ दो, तुम अपना कैश फ्लोस बता दो ना कि तुम कितना कैश फ्लो जनरेट करने वाला है। You can understand, is it not difficult to forecast? It is difficult to forecast. So we are talking about दूसरे companies, उनका cash flows forecast करना daunting task. Learning module मेरे ख्याल से whatever 5, 6, 7, 8 they will be towards कैसे forecast नहीं, not these, whatever. जो 12 लर्निंग मॉड्यूल है उसमें 3 या 4 लर्निंग मॉड्यूल एक्सप्लेन हाउ टू फोरकास्ट द कैश फ्लोज, हाउ टू फोरकास्ट द कैश फ्लोज, ठीक है। देयर आर 3 or 4 चैप्टर्स डिवोटेड टू हाउ टू फोरकास्ट द कैश फ्लोज, ठीक है। एंड दिस चैप्टर इज अबाउट कैश फ्लो फोरकास्ट हो गया, कैश फ्लो फोरकास्ट हो गया। अब सर
उसको पुल करने के लिए रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न चाहिए, उसको पुल करने के लिए रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न चाहिए। वो जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है वो कैसे निकलेगा, दैट इज दिस चैप्टर, ठीक है ना। स्टुपिडिटी के जैसे जो भी पढ़ेगा लाइव क्लासेस में 1-1 सेकंड में टाइप करेगा ये क्या वो क्या, तो इन दैट केस तुम अपने आप ही नाचते रहोगे, ठीक है। क्या मैं एक चीज 50 बार में बने 50 चीज एक बार में बता सकता हूं? नहीं। क्या कर रहा हूं, धीरे जा रहा हूं, समझा रहा हूं कॉन्टेक्स्ट, गिविंग यू द कॉन्टेक्स्ट इन विच, ओके। हर एक चीज जो कॉमा बोल रहा हूं उससे चालू हो जाए व्हाट इज दिस, कोई उछल रहा है व्हाट इज WACC, कोई उछल रहा है व्हाट इट इज, तो आपको जो उछलना है आप उछलते रहो। फॉर मी आई फील दैट आपके मन में जो मॉलिक्यूल्स एटम्स चल रहे हैं वो उछल रहे हैं, व्हिच आर बीइंग मैनिफेस्टेड ऑन द स्क्रीन, फॉर व्हिच आई एम नॉट रिस्पांसिबल राइट नाउ, ठीक है ना। इट इज बियॉन्ड माय कैलिबर टू आंसर एवरीथिंग दैट इज कमिंग इनटू योर माइंड, ठीक है ना। तो क्वेश्चन सेकंड टाइम डट खाओगे, डू नॉट टाइप एनीथिंग अनलेस एंड अंटिल यू आर क्लियर दैट इट इज इन द फ्लो ऑफ द क्लास, ठीक है। एक बार खाए थे याद है ना 4 या 5 क्लास पहले, उसके बाद सॉरी चल रहा है तुम्हारा 4 क्लास है, वापस से सर्कल चालू कर रहे हैं, ओके। सो डिड वी अंडरस्टैंड वैल्यूएशन के लिए क्या 2 चीज चाहिए, नंबर 1 फ्यूचर कैश फ्लोज, नंबर 2 डिस्काउंट रेट, नंबर 1 फ्यूचर कैश फ्लोज, नंबर 2 डिस्काउंट रेट। उसके बाद अपने प्रेजेंट वैल्यू करेंगे तो आंसर आ जाएगा। इज दिस चैप्टर गोइंग टू टीच फ्यूचर कैश फ्लोज? नो। इज द सिलेबस गोइंग टू टीच फ्यूचर कैश फ्लोज? पार्टली यस, बिकॉज लेवल 2 में और ज्यादा है फ्यूचर कैश फ्लोज का डिस्कशन, लेवल 2 में ज्यादा है। लेवल 2 में और एक चैप्टर है एडवांस्ड, इसी चैप्टर का एडवांस्ड कॉस्ट ऑफ कैपिटल या कॉस्ट ऑफ इक्विटी एडवांस्ड, तो लेवल 2 में दोनों का एडवांस्ड, यहाँ पे फर्स्ट इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो मेरा अभी जो 5 मिनट में डिस्कशन हुआ उसमें मैंने केवल ये बताया कैपिटल एसेट इज एन एसेट व्हिच विल प्रोवाइड फ्यूचर कैश फ्लोज। मेरे को डिसाइड करना है वो कैपिटल एसेट को बाय करे कि नहीं, उसका दाम मेरे को दिख रहा है 500 रुपया, शुड आई बाय इट और नॉट। इसको डिसाइड करने के लिए आई हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द स्टॉक, इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू के लिए आई नीड 2 थिंग्स, नंबर 1 फ्यूचर कैश फ्लोज, नंबर 2 रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। फ्यूचर कैश फ्लोज एंड रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, व्हाट इज दिस चैप्टर अबाउट, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। If you can understand this, you should be clear. Okay, ये बता रहे हैं सर, ठीक है ना। चलो लिखो, राइट डाउन। हेडिंग का कॉन्टेक्स्ट फुल स्क्रीन कर दो, अपने आप देखेंगे। कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट मतलब बता रहे हैं चैप्टर कहां फिट कर रहा है, दैट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्टेक्स्ट। तो कॉन्टेक्स्ट में पॉइंट नंबर 1, what is a capital asset? Point number 1, what is a capital asset? What is a capital asset? Solution. Capital asset is one which generates a stream of future cash flows. Capital asset is one which generates a stream of future cash flows. Which generates a stream of future cash flows. तो एक बंदा लिख रहा था वहां पे पापा मम्मी कैपिटल एसेट है, तो क्या हो रहा है, क्या क्या चल रहा है, कोई लिमिट नहीं है, समझ गए। दैट जस्ट गोस टू शो इमेच्योरिटी, ठीक है। अ कैपिटल एसेट इज वन व्हिच जनरेट्स अ स्ट्रीम ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज, ठीक है। डैश स्टॉक, बॉन्ड, रियल एस्टेट, प्रोजेक्ट एटसेट्रा। स्टॉक, बॉन्ड, रियल एस्टेट, कॉमा प्रोजेक्ट एटसेट्रा। एक बड़ा प्रोजेक्ट कोई कंपनी बैठा रहा है, प्लांट मशीनरी, नया सेमीकंडक्टर का प्लांट बैठ रहा है, ठीक है, तमिलनाडु में। तो दैट प्लांट इज गोइंग टू बी अ मेजर इन्वेस्टमेंट टुडे, बिलियंस ऑफ डॉलर्स फॉर द पर्पस ऑफ जनरेटिंग फ्यूचर कैश फ्लोज, दैट्स अ कैपिटल एसेट, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, point number 2, we have to decide whether to go long. We have to decide whether to go long. Long money, buy, bracket buy. We have to decide whether to go long, bracket buy, bracket close, or short, bracket short money, sell. We have to decide whether to go long, bracket buy, or short, bracket sell the capital asset.
ओके, द कैपिटल एसेट जिसका डिस्कशन चल रहा होगा, द कैपिटल एसेट कि बाई करें या सेल करें, full stop. For this we have to compare, its price. ओके, लैंग्वेज सोचते रहना, लैंग्वेज का मतलब फालतू का मत लिखना, हिस्ट्री ज्योग्राफी का नोट्स नहीं चल रहा है। फॉर दिस वी हैव टू कंपेयर द प्राइस ब्रैकेट P0 P माने प्राइस, 0 माने आज, P0 with its intrinsic value bracket IV0 with its intrinsic value bracket IV0 capital IV0 इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब सबसे इजी वर्ड शुड बी प्राइस, उसके एरो देखें, शुड बी प्राइस। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ समबडी सेइंग इंट्रिंसिक वैल्यू, मेरे को समझ में नहीं आता। इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब दाम क्या होना चाहिए, प्राइस मतलब दाम क्या है। ओके, शुड बी प्राइस, ओके, शुड बी प्राइस। पैरा चेंज, if P0 less than IV0, if P0 less than IV0, होप लिख पा रहे हैं, प्राइस कम है, less than IV0 dash, the asset is undervalued, the asset is undervalued or underpriced, okay, the asset is undervalued या फिर लिख दो underpriced, और the asset is trading cheap, सारा लैंग्वेज लिख लो जिससे वो लैंग्वेज काम आता रहेगा फ्यूचर में। The asset is undervalued, it's underpriced, it's trading cheap, सस्ता मिल रहा है, सस्ता, trading cheap, डॉट 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 गो लॉन्ग, डॉट 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 गो लॉन्ग, बाय कर लीजिए कूद के, गो लॉन्ग। पैरा चेंज, if P0 greater than IV0, if P0 greater than IV0, you know what to write. If P0 greater than IV0, please complete the notes. I think notes आप कंप्लीट कर लिए। The asset is overvalued या overpriced और trading rich, ठीक है ना? डॉट डॉट डॉट, we should go short, ठीक है ना? एक पर्टिकुलर चीज है जो हो सकता है आगे निकल सकता हूं, बट फिर भी मन नहीं कर रहा आगे निकलने का। When I dictated P0 less than IV0, the asset is trading is underpriced, क्या underpriced? I think वो ज्यादा नेचुरल था, बट व्हेन आई डिक्टेटेड इट्स अंडरवैल्यूड, कोई बहुत ज्यादा डिग करता है तो उसको थोड़ा सा स्ट्राइक होगा कि प्राइस कम है ना सर, वैल्यू थोड़ी कम है। इफ यू रियली डिग इनसाइड वर्ड्स, थिंक अबाउट इट, मैं बोल रहा हूँ अंडरप्राइस्ड लग रहा, हाँ ठीक है तो प्राइस कम है। अंडरवैल्यूड तो कोई पर्सन जो रियली अटकता है ना चीजों में, वो सोचेगा अंडरवैल्यूड क्यों लिखा है। हो सकता है ये डाउट आपके मन में आया ही नहीं, ठीक है, तो नेचुरली आना भी नहीं चाहिए, बट यू नेवर नो, व्हेन टीचिंग अ डाइवर्सिफाइड ऑडियंस ऑफ 1000 स्टूडेंट्स, डाउट्स कैन कम, शुड कम एंड शुड बी एंटरटेन्ड। लेट मी एक्सप्लेन। जो प्राइस है, इट इज डिटरमाइंड बाय वन इन्वेस्टर, सम इन्वेस्टर्स और मिलियंस ऑफ इन्वेस्टर्स। प्राइस इज डिटरमाइंड बाय मिलियंस ऑफ इन्वेस्टर्स। एक तरह से प्राइस इज एन इंट्रिंसिक वैल्यू अकॉर्डिंग टू मार्केट कंसेंसस। जो प्राइस है, इट इज ऑल्सो इंट्रिंसिक वैल्यू अकॉर्डिंग टू होम, मार्केट कंसेंसस। दुनिया में जो लोग हैं जो स्टॉक को देख रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, उन सब का जो कंसेंसस ओपिनियन है, कंसेंसस वर्ड तो ऑब्वियस है ना, जानते हैं। अगर आज की क्लास खत्म हुई एंड ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 और आपको एनोनिमस रेटिंग देना पड़ता है, एनोनिमस आपका नाम नहीं जाएगा, व्हेन आई कांट सी योर नेम, यू वुड हैव गिवन अ रेटिंग, कोई 6, कोई 7, कोई 10, कोई 1, ठीक है, और 0 अलाउड नहीं है। कोई रेटिंग देते हैं और उस जो रेटिंग देते हैं आप लोग उसका एवरेज निकाल लेते हैं। एवरेज आपका 6.5, तो 6.5 इज द कंसेंसस रेटिंग ऑफ द स्टूडेंट्स। पर हो सकता है कोई पर्टिकुलर स्टूडेंट आप में से है जिसके लिए वो 10 है, यू डोंट एग्री विद दैट 6.5, गलत बोल रहे हैं सर, एकदम 10/10 था वो क्लास, और किसी के लिए 2 है। दैट्स द सेम थिंग व्हिच इज हैपनिंग। तो मैं बोल रहा हूं जो प्राइस चल रहा है वो भी तो एक तरह से वैल्यू ही है। वैल्यू किसके द्वारा? बाजार के द्वारा।
In that sense, using the word it's undervalued is correct. ठीक है? It's undervalued in the market, sir. ये हीरा है, कोई समझ रहा नहीं है. ये जो stock है ना, ये हीरा है. But the stock is so good, nobody's understanding, sir. They are cheaply pricing it, they are undervaluing it. They mean food the world. They mean food the world. It's undervaluing it. ठीक है? और इनफैक्ट अगर यहाँ पे एक चीज बोल दिया तो एक चीज और बोलने का बनता है. ठीक है? To develop maturity. The reason data, the reason why you are doing this program, the reason why you are sitting over here, believe me, if you think you are sitting over here to clear the CFA L1 exam, then L2, then L3, it is totally wrong. The reason why you are sitting over here is to understand how to generate differential insights. How to generate differential insights. मतलब there are many assets, बहुत सारे assets को आप देखोगे और आप बोलोगे मोटा मोटी जो बाजार को लग रहा है वही मेरे को लग रहा है, जो बाजार को लग रहा है वही मेरे को लग रहा है. इसका मतलब आपके अनुसार P0 इक्वल टू IV0, P0 इक्वल टू IV0, उस पे हाथ लगाए तो रिटर्न आएगा नॉर्मल रिटर्न. क्या रिटर्न? नॉर्मल रिटर्न. माने नॉर्मल मतलब इस क्लास पे जो सीखने वाले ना इस चैप्टर में कि नॉर्मल रिटर्न क्या होना चाहिए स्टॉक से 14 या 17, बस वही आएगा नॉर्मल रिटर्न. बट जिन एसेट्स में आपने बोला कि आई डोंट एग्री विद द मार्केट, बाजार गलत कर रहा है, वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं ये पोटेंशियल है. सपोज हमने बात की तारी जमीन पे इशारा, ठीक है? तो इन दैट केस आमिर खान इज लुकिंग एट इशारा विद अ डिफरेंट पोटेंशियल. ठीक है? तो दैट इज अ डिफरेंशियल इनसाइट्स. दैट कोई कंपनी को, कोई एसेट को देख के आप कुछ और ही सोच रहे हो उसके बारे में एज कंपेयर टू बाजार सोच रहे हो. Developing that differential insights is the genesis of becoming an equity research analyst and a fund manager. Okay, how do we generate that differential insights? And therefore it is so difficult ना, and it is also एक तरह से egoistic. Isn't it egoistic? दुनिया भर का लोग सुबह से रात तक बुद्धि लगा लगा के स्टॉक का दाम निकाल रहे हैं 720, और तुम ज्ञानचंद आ गए जो बोल रहे हो वो लोग रॉन्ग है, तुम राइट हो, इसका दाम 1420 होना चाहिए. The first thing that comes is that ego. You are considering yourself to be extra smart because usually the market is correct, you are wrong. But in some few cases, maybe with a lot of judgment and experience, you may be able to do it. And therefore, there are so few analysts and fund managers who will be able to deliver alpha or supernormal return in the long term. ठीक है? तो मैंने यहाँ पे जो बोला वो मैं डिक्टेट नहीं कर सकता हूँ. मैं गया अंडर वैल्यूएशन वर्ड पे, मैंने समझाया कि जो प्राइस है वो भी तो वैल्यू है, किसके द्वारा? वर्ड के द्वारा. ओके, वो समझाया कि मैंने अंडर वैल्यूड क्यों लिखा है वर्ड. ठीक है? कि प्राइस इटसेल्फ इज अ वैल्यू. फिर मैंने समझाया कि एक्चुअली तुम्हारा जो ओपिनियन है अगर डिफर करेगा तब जाके इंट्रिंसिक वैल्यू तुम्हारे अनुसार डिफरेंट होगा. वर्ड का इंट्रिंसिक वैल्यू P0 इज वर्ल्ड IV0, हुज वर्ल्ड IV0, एंड IV0 इज योर IV0 तुम्हारे अनुसार. अंडरस्टूड? ठीक है. पॉइंट नंबर 3. So the whole point is to point number 3. So the whole point is to generate IV0. So the whole point is to generate IV0. Full stop. If you refer back to point number 1, assume कर रहा हूँ आप point number 1 को refer back कर चुके हैं जब मैं लिखा रहा हूँ. If you refer back to point number 1, आपने देख लिया point number 1 जहाँ capital asset को define किया था. If you refer back to point number 1, you will conclude that IV0 is a DCF exercise. DCF का full form discounted cash flow exercise. IV0 is a DCF exercise. DCF का full form जिसको भी नहीं आता है ब्रैकेट में लिख लेना चाहिए, discounted cash flow exercise. Okay, IV0 is a DCF exercise. Discounted cash flow exercise is a DCF exercise. Dash para change. Screen.
यस, तो लिख लेते हैं IV0 इक्वल टू PV ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज discounted at the required rate of return. IV0 equal to PV of the future cash flows discounted at the required rate of return. IV0 equal to PV of future cash flows discounted at the required rate of return. क्या वॉइस प्रॉब्लम है क्या रॉबी सिंह को हो रहा है? पीवी ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज डिस्काउंटेड एट द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न. इज देयर अ वॉइस प्रॉब्लम? सही हो गया, नो प्रॉब्लम. ओके, ठीक है. पीवी ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज डिस्काउंटेड एट द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न. नेक्स्ट लाइन. एक मिनट, ये फ्यूचर कैश फ्लोज और ये रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न दोनों को अंडरलाइन कर दो. 1 2 दोनों को अंडरलाइन कर दो. 1 2. सो IV0 इक्वल टू एक्सपेक्टेड CF1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस RE प्लस एक्सपेक्टेड CF2 बाय 1 प्लस RE द होल स्क्वायर plus expected CF3 by 1 plus RE the whole cube plus dot 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 expected CFN by 1 plus RE the whole power n. फर्स्ट ईयर का प्रेजेंट वैल्यू, सेकेंड ईयर का प्रेजेंट वैल्यू, थर्ड ईयर का प्रेजेंट वैल्यू करते करते जब तक आएगा तब तक का प्रेजेंट वैल्यू, क्या पता जिंदगी भर आए. जैसे इक्विटी इज अ परपेचुअल एसेट, उसमें जिंदगी भर कैश फ्लोज आना है. आप बीच में बेच दोगे वो अलग बात है, बट अदरवाइज इक्विटी हैज नो फाइनाइट लाइफ ना. ठीक है, टू इन्फिनिटी भी हो सकता है. तो इन सब का प्रेजेंट वैल्यू. ऊपर में एक्सपेक्टेड क्यों यूज किए? ऊपर में मैंने न्यूमरेटर में एक्सपेक्टेड क्यों यूज किए? इक्विटी की ओके, वहां पे आंसर क्या है लाइव स्टूडेंट्स का? ऊपर में एक्सपेक्टेड वर्ड क्यों यूज किया है? फेस टू फेस पे कुछ स्टूडेंट्स ने जवाब दे दिया. लाइव स्टूडेंट्स चिराग, काव्या, लॉरेंस, दीक्षा, रॉबी, मौक्तिक, दीप. अनसर्टन. जो फ्यूचर कैश फ्लोज है वो अनसर्टन है. तो अगर अनसर्टन है तो वी हैव रिटन एक्सपेक्टेड. एक्सपेक्टेड का मतलब ऑन एन एवरेज. ऑन एन एवरेज का मतलब मीन. ऑन एन एवरेज का मतलब मीन, वो मीन मीडियन मोड वाला मीन. ठीक है. तो इफ आई टेल यू अ सिंपल कैलकुलेशन जो आप मुंह जुबानी कर सकते हो, ट्राई टू डू इट. फर्स्ट ईयर CF1 मैं एक एसेट को एनालाइज कर रहा हूं. फर्स्ट ईयर या तो 100 करोड़ आएगा या 200 करोड़ आएगा विद अ प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.6.4. फर्स्ट ईयर या तो 100 करोड़ आएगा या 200 करोड़ आएगा विद अ प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.6.4. तो इन दैट केस एक्सपेक्टेड क्या है? 100 करोड़ या 200 करोड़ आएगा फर्स्ट ईयर, चांस है 60%, 40%. तो व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन? आपको अमाउंट बताना है. आंसर निकाल लो, कैलकुलेशन करो मन में लिख के जो तुम्हारा मन. या तो 100 करोड़ आएगा या 200 करोड़ आएगा फर्स्ट ईयर. अनसर्टेन है ना. 0.6.4 चांस है. तो पुरुषोत्तम ने बोला है 140, आयुष ने बोला है 70, अभिषेक ने बोला है 75, सुनीता ने बोला है 60 प्लस 40, अनीश 100, चिराग 140, सुनीता 140. 100 करोड़ 200 करोड़ प्रोबेबिलिटी 0.6.4. कुछ करोगे तब तो होगा. तो अब सब्जेक्ट 140 बोल रहे हैं, मौक्तिक 70 बोले हैं. 0.6 इंटू 100, जो 100 करोड़ का चांस 0.6 है, तो वेट क्या हो गया? 0.6 इंटू 100. और जो 200 है उसका चांस 0.4 है. तो 200 इंटू 0.4 इज व्हाट? 80. 100 इंटू 0.6 इज 60. इट्स व्हाट? 140. वेटेड एवरेज. व्हाट इज इट? वेटेड एवरेज. लिख के कर लेंगे, डोंट वरी. ये मत सोचना लिखा है क्यों नहीं करा रहे. पहले आपके माइंड को पकड़े. इट्स वेटेड एवरेज ना 100 200. अगर मैं प्रोबेबिलिटी लिखाता ही नहीं,
अगर मैं प्रोबेबिलिटी लिखाता ही नहीं तो आप मानते इक्वल लाइकली, आप बोलते 150। जिसने 70 ये सब बोला वो तो हाइट से यार, मैं बोल रहा हूं 100 200 और तुम 70 आंसर दे रहे हो। If I would not have given the probability, you would have implicitly assumed it's equally likely. Yes. दोनों का चांस हाफ हाफ है, तो हाफ into 100 plus half into 200 is equal to 150. Yes. But half आप क्यों माने? 60-40 दिया हुआ है ना, तो 0.6 into 100 plus 0.4 into 200 is equal to what? 140. 140 is expected CF1. 140 is expected CF1. Is it okay? ध्यान देना सब जन, ध्यान देते रहना, मैं अपने आप डिक्टेट कर दूंगा, पहले ध्यान देते रहो। सेकेंड एसेट, एक दूसरा एसेट है, दूसरा एसेट, आई नीड योर अटेंशन। दूसरा एसेट वो फर्स्ट ईयर देने वाला है 130 या 150, क्या देने वाला है? 130 आएगा या 150 आएगा, इक्वली प्रोबेबल, इक्वली प्रोबेबल। तो एक्सपेक्टेड क्या है? 140, 130, 150 का एवरेज 140 आ रहा है, जानबूझ के मैंने इक्वल प्रोबेबिलिटी दे दिया। 140 आ रहा है, 130 या 150 इक्वल प्रोबेबल है, तो 140 तो आ रहा है। तो फर्स्ट केस में जब 100 200 60 40 तब भी 140 आया। सेकेंड केस में जब 130 150 इक्वल प्रोबेबिलिटी तब भी 140 आया। तो एक्सपेक्टेड कैश फ्लो इन बोथ द स्टोरी सेम, 140 140। कौन से केस में देयर इज अ हायर रिस्क इन्वॉल्व्ड? फर्स्ट केस या सेकेंड केस हायर रिस्क इन्वॉल्व्ड? फर्स्ट केस में हायर रिस्क इन्वॉल्व्ड। ओके, फर्स्ट केस में देयर इज अ हायर रिस्क इन्वॉल्व्ड। I can go to further levels where say that first year या तो -300 या 700 आएगा, -300 या +700, and I can give a certain probability. You can understand 140 लाना पॉसिबल है मेरे लिए। मैं -300 बोलूंगा या तो 300 जाएगा या 700 आएगा, एंड मैं प्रोबेबिलिटी को खेल दूंगा जिससे कि 140 आ जाए। बट देन इट्स मोर रिस्की, इट्स मोर रिस्की, ठीक है। तो on the other hand, if we talk about a 1 year zero coupon government bond issued by the government of India, 1 year zero coupon bond issued by the government of India, भारत सरकार ने इशू किया 1 साल का बॉन्ड, वो 140 पक्का देगा, वो 140 पक्का देगा। there is no 139, there is no 141, 140 माने 140, तो 140 is there for what? Certain. 140 is there for what? Certain. So there are different flavors of 140 now. 140 with a close by range, 140 with a widely dispersed range, 140 with a very very widely dispersed range. Okay, and does that matter to you कि सर 140 एग्जैक्ट आएगा या 140 में जरा सा ये हो सकता है, 140 बहुत हो सकता है, मेरे को फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है? पड़ता है, ऑब्वियसली पड़ता है, because we all are assumed to be risk lovers or risk averse. Averse, A-V-E-R-S-E, averse का मतलब होता है we hate risk. That is a presumption of rationality. When we say investors are rational, ठीक है, B.Com textbooks वगैरह में rational मतलब investors are supposed to hate risk. It is presumed investors are rational. Rationality का मतलब हम risk को hate करते हैं। तो अगर ज्यादा dispersed है तो मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, I don't like it. I don't like it का मतलब उस 140 के बदले I would like to pay more today or less. But sir maths wise जो आप पे करेंगे आज वो तो 140 डिवाइड बाय 1 प्लस आ रही है, तो सेम 140 140 140 140 अलग अलग आंसर कैसे आएगा? बिकॉज ऑफ RE, बिकॉज ऑफ RE, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। तो देखो हमने सीखा LM4 में एंड QM LM1 में RE रिटर्न इज इक्वल टू RF प्लस रिस्क प्रीमियम, RE is equal to RF plus risk premium। एकदम सिंपल सा चीज होगा, बट और है क्या जानने को इस चैप्टर में? फॉर एग्जांपल और है क्या जानने को? एक ही चीज तो है, RF प्लस रिस्क प्रीमियम। यार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होता तब तो मेरे को 7% चाहिए था, ठीक है, 7%। व्हाई? बिकॉज नंबर 1 आई एम सैक्रिफाइसिंग माय कंजम्पशन रियल, प्लस देयर विल बी इन्फ्लेशन, सो देयरफॉर आई वांट 7% दैट RF। But because government of India का नहीं है, I am buying something else which is risky. I want more than 7. It is common sensical. Many times पढ़ाई will make it less common sensical. Don't let it happen कि जहाँ स्टडीज की वजह से आप उसको कुछ और सोच रहे हो जबकि है नॉर्मल, ठीक है। तो RE जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है उसी का एक चैप्टर है, एंड RE is equal to RF plus risk premium. The worst part is that चैप्टर ओवर हो गया है,
ठीक है, और चैप्टर के बाद तुम नहीं बोल पा रहे हो क्या सीखे, सीखे बस यही RE इक्वल टू RF प्लस रिस्क प्रीमियम। तो सर ये तो आता ही है, तो फिर क्या, वो जो रिस्क प्रीमियम है उसमें दो चीजें, एक तो रिस्क कितना है, दूसरा हर एक रिस्क के बदले कितना रिवॉर्ड चाहिए। रिस्क कितना है, हर एक रिस्क के बदले कितना रिवॉर्ड चाहिए। अगर हर एक रिस्क के बदले रिवॉर्ड चाहिए 4, कितना, 4 फॉर 1 रिस्क, तो अगर रिस्क 2 है तो 8, रिस्क 3 है तो 12, वो जो 4 है वो हमको पता लगाना है, which is the price of risk, which is the price of risk, and we need the quantity of risk, कि रिस्क कितना क्वांटिटी है, 0.5 है कि 1 है कि 1.5 है कि 2 है, वो चाहिए। ठीक है, so that's what the focus of this chapter is। ठीक है, देखो नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, the focus of this LM, the focus of this LM, the focus of this LM। अब एक स्टूडेंट क्या बोल रहा है, does this formula assume equal cash flows? जस्ट बिकॉज मेरे को DCF मोड, कैश फ्लो मोड, कैलसी का यूज नहीं करना था, इसलिए मैंने शुरू में 500 500 500 का एग्जांपल लिया, बिकॉज वो लेने से अपने को फायदा क्या हुआ, अपने लोग कैलसी में नहीं बंधे, 2 मिनट में निकाल के आगे बढ़ गए। अगर मैं अलग अलग कैश फ्लो लेता 500 700 800 900, तो अपने को कैश फ्लो मोड में जाए कैलकुलेशन करना पड़ता, वो तो आता है कि 500 700 900। तो यू आर आस्किंग दिस हेमंत इज इमेच्योर्ड क्वेश्चन, ऑब्वियसली कैश फ्लो बराबर नहीं होगा, अलग अलग ही कैश फ्लो होगा। ठीक है, तो उसको निकालना आता है, the calci can do that। I didn't want to invest our collective energy into that right now, because of which I take an easy example of 500। ठीक है, what are you writing? The focus of this LM। okay, अब क्या पूछ रहे हो, अगर उसको बड़ा से निकालने दो। आप बोल रहा है I mean periodicity, यानी वो बोलना चाह रहे हैं जरूरी है क्या 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद आएगा, कुछ भी जरूरी नहीं। हो सकता है 1 साल बाद आएगा, 2 3 नहीं आएगा, फिर 4 आएगा, 5 6 नहीं आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 8वां नहीं आएगा, फिर 11 12 13 14 15 आएगा। इंडियन एग्जामिनेशन होता है, उनको बहुत मजा आता है इस तरह देने में, देख मजा आ गया, बिकॉज सारा का सारा दुनिया भर का बुद्धि केवल उसी में लगेगा, टान मैंने समझा, डिस्काउंट कर, 6 महीने में आएगा, 1 साल में आएगा, 1.25 साल में आएगा, 1.5 साल में आएगा, 1.22 ईयर्स में आएगा। उसका सारा एपरेटस एक्सेल पे भी होता है, कैलसी में भी है, बट उसके ऊपर अपना एनर्जी नहीं लगता है। ठीक है, बहुत ही सही तरीके से CFA इंस्टीट्यूट एनर्जी का एलोकेशन करता है। योर प्रेशियस एनर्जी शुड नॉट गो इनटू दोस थिंग्स, ओके, शुड गो इनटू अंडरस्टैंडिंग द लॉजिक ऑफ द मॉडल्स एंड अंडरस्टैंडिंग हाउ टू फोरकास्ट द कैश फ्लोज। आई थिंक हेमंत यू गॉट योर आंसर। हेमंत बाक्षी, डिड यू गेट योर आंसर? बाकी लोग सोच रहे हैं हेमंत को इतना इंपॉर्टेंस, हमारे लिए तो नहीं रुके थे। यस, ही गॉट हिज आंसर। चलिए, क्या लिख रहे थे हम लोग? द फोकस ऑफ दिस LM, द फोकस ऑफ दिस LM इज ऑन, द फोकस ऑफ दिस LM इज ऑन introducing models for finding out the discount rate that is required rate of return। जिन्होंने क्वांट फाउंडेशन या बिल्डिंग ब्लॉक का क्लास किया है, इंटरेस्ट रेट का 3 नाम था, क्या 3 नाम था? जिन्होंने बिल्डिंग ब्लॉक क्वांट फाउंडेशन का क्लास किया, इंटरेस्ट रेट का 3 इंटरप्रिटेशन था, एक तो डिस्काउंट रेट, एक रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, और एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। डिस्काउंट रेट और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ओके, डिस्काउंट रेट, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, उसका मॉडल्स। ठीक है, उसका क्या मॉडल्स है? आपने सोचेगा इसके लिए क्या मॉडल चाहिए, इसके लिए कोई मॉडल थोड़ी चाहिए। चेक करो एक बार जीपीटी पे,
इन्फोसिस के रफली कितने सारे शेयर होल्डर्स हैं? मैंने कुछ एस्टिमेट तो बता देगा जीपीटी। इन्फोसिस के कितने सारे शेयर होल्डर्स हैं रफली? फुल स्क्रीन कर दो प्लीज। इन्फोसिस के कितने सारे शेयर होल्डर्स हैं रफली? जीपीटी कुछ तो बता पाएगा मेरे ख्याल से। 27.5 लाख। क्या बोले? 27.5 लाख। 27.5 lakhs. Okay, somebody in the batch is saying 27.5 lakhs. So around 3 million. Around 3 million मान ले 30 लाख। 27.5 lakhs या 3 million करीब शेयर होल्डर्स हैं इन्फोसिस के, which are spread not only across India but across the globe. ठीक है तो हमें क्या पता लगाना है? सुनना, इन्फोसिस के शेयर होल्डर्स का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न क्या है? इन्फोसिस के शेयर होल्डर्स का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न क्या है? उसके लिए अगर किसी को दौरा चढ़ा है सनक, तो सारे के सारे शेयर होल्डर्स को इन्फोसिस फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट किया, एक पोल, और पोल में पूछा व्हाट इज द रेट ऑफ रिटर्न यू वांट टू अर्न फ्रॉम माय स्टॉक? व्हाट इज द रेट ऑफ रिटर्न यू वांट टू अर्न फ्रॉम माय स्टॉक? कोई बोला 18%, कोई बोला 19%, कोई क्या बोलेगा तुम लोग को ही पता है, 1000%। मजा लेने में सब फर्स्ट है। तो 18, 19, 16, 15, 14, कोई 1000, 2000, ठीक है। तो खैर वो लोग को तो आउटलायर्स मान के स्टैट्स में हटा देंगे जो उस तरह के लोग, ठीक है। तो 30 लाख में से बिलीव मी 10 या 15 लाख तो अंडरस्टैंड बोलने वाले हैं, एट यू नो इट। बाकी जो रीजनेबली बोलेंगे उन सबका एवरेज निकालिए। क्या निकालिए? एवरेज। एंड एवरेज इज द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न बाय शेयर होल्डर्स। बट ये एक्सरसाइज करना पॉसिबल ही नहीं है। इतना बड़ा पोल कैसे कंडक्ट होगा? तब बोलेंगे सर कुछ सैंपल ले लीजिए, 40 लोग इन्फोसिस के शेयर होल्डर से पूछ लीजिए। सैंपलिंग में अलग झमेला है, क्या पता वो सैंपल रिप्रेजेंटेटिव है कि नहीं है। तो बिकॉज ऑफ विच ये धंधा कोई नहीं करता है, मैंने टू बी वेरी क्लियर। बट आई थिंक आपको सोचना चाहिए फर्स्ट प्रिंसिपल्स ये कि हमको पता लगाना है व्हाट इज द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। तो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न बाय शेयर होल्डर्स, इसका मतलब व्हाई डोंट यू आस्क देम? Not possible, not feasible, they will not reply in an unbiased manner. So therefore that's not the sensible thing. So the sensible thing is that what should be the required rate of return? Instead of what is the required rate of return, the sensible thing is that what should be the required rate of return, assuming that people are rational. What return should they demand? What return should they demand? That is the approach. And uska logic है, whatever RF they can earn right now from government securities, say 10-year G-Sec in India, check please, 10-year G-Sec in India, 10-year GOI securities का yield क्या है? You understand that I can do the same on screen, but I make you do, okay, and slow down the pace because of a reason. 10-year government of India security का yield क्या चल रहा है अभी? 6.7%. 6.7%. 10-year GOI yield इंडिया में चल रहा है 6.7%. Okay, 6.7% is a 10-year GOI yield. Okay, 6.7%. 10 साल का yield. 10 साल क्यों लेते हैं? Because लेने को तो 20 साल 30 साल भी ले सकते हैं, because इक्विटी लॉन्ग टर्म होता है, पर 10 साल में लिक्विडिटी हाई होता है। 10 साल इज वेरी पॉपुलर। 30 साल 40 साल का अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटी है, वो बेचा खरीदी उसका नहीं होता है, इट इज नॉट कंसिडर्ड टू बी रिप्रेजेंटेटिव प्राइस। Therefore, we stick at 10 years. It's a normal norm everywhere. तो 6.7% तो सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे रहा है, तो इन्फोसिस तो ज्यादा देना चाहिए ना। सपोज तुम्हारे ख्याल में आया इन्फोसिस तो ज्यादा देना चाहिए, Yes. तो फिर तुम्हारे ख्याल में आया कि सर इन्फोसिस तो स्टॉक है, क्या है? शेयर है। तो शेयर मार्केट में रिस्क है क्या? ऑफ कोर्स है, शेयर मार्केट में रिस्क है। तो इन दैट केस कई लोग तो ऐसा करते हैं, सुनना क्या, वो लोग ये देखते हैं कि इन्फोसिस का तो वैसे बॉन्ड है नहीं, बिकॉज आईटी कंपनीज डोंट इश्यू बॉन्ड। बट अगर कोई दूसरे कंपनी का बात करता है, टिस्को, टाटा मोटर्स, तो इन लोग का डेट उठाया हुआ है, बॉन्ड इश्यू किया हुआ है। एंड सपोज एक बार, अभी जीपीटी में नहीं जाएंगे, 6.7 तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का यील्ड है। एंड मैंने चेक किया लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स ऑफ टिस्को, लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स ऑफ टाटा स्टील, उसका रिटर्न जो है वो सपोज 10.5% है। क्या है? 10.5%, मन से बोल रहा हूँ। तो 6.7% गवर्नमेंट बॉन्ड, 10.5% टिस्को का बॉन्ड, करेक्ट है। तो फिर टिस्को का जो स्टॉक है उससे आपको रिटर्न
10.5 से ज्यादा चाहिए या कम चाहिए? ज्यादा चाहिए, शेयर है, ज्यादा रिस्की है। तो कोई लोग मन से फिर 2-3% जोड़ देते हैं, ठीक है, और 2-3% जोड़ के वो भी फॉर्मूला हो गया 10.5 + 2 12.5। बट ये जो 2-3% ऐसे जोड़ा, एज अ स्टूडेंट कोई तुमको सिखाएगा ऐसे मन से जोड़ देना, would you take it that way nicely? No, you need a framework ना, you need a framework। फील का इंस्टेंट का बात थोड़ी सा चलिए 2% जोड़ दें, कहाँ 2 जोड़े 4 जोड़े, उसका फ्रेमवर्क माने मॉडल। वाई अ मॉडल? मॉडल का जो बात आ रहा है ना, नहीं सर वो 2-3% उच्चंतु में मत जोड़िए, वो 2-3% का एक फ्रेमवर्क दीजिए ना, जिससे आई कैन अप्लाई इट लॉजिकली एंड प्रेजेंट इट समवेयर। आई कैन नॉट प्रेजेंट इट लाइक दिस। तो दैट इज अ मॉडल और अ फ्रेमवर्क। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाई डू वी नीड अ मॉडल? ये बेस्ट तरीका था कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी का 6.7 है, उसी कंपनी का जिसका स्टॉक में इन्वेस्ट करे उसका बॉन्ड भी है, बॉन्ड उसका 10.5 है, 10.5 है, तो सर उसका स्टॉक का ज्यादा होना चाहिए, तो जोड़ दे 2% ज्यादा, 12.5% हो गया। ओके, आरई हो गया, चलो चालू करते हैं, ठीक है ना। उसके बदले देयर इज अ फ्रेमवर्क दैट वी आर रिक्वायरिंग। ओके, दैट फ्रेमवर्क और द मॉडल इज द कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, CAPM। देखो नाम क्या रखा, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। 99% of the audience do not understand the name itself, and which is the biggest unfortunateness. Capital asset, point number 1, are future cash flows. Price of a capital asset is the present value of the future cash flows. To find out the price, you need the discount rate, required rate of return, and CAPM is going to give you the model for finding out the required rate of return. And hence it's a pricing model. वरना लोग सोचते हैं प्राइसिंग तो हुआ ही नहीं यार, यहाँ पे तो रिटर्न निकाले हैं, उसी रिटर्न से टांग के तो प्राइस निकालोगे, ठीक है। Hence the model required, ठीक है। पॉइंट नंबर 4 लिखो, 4 या 5? पॉइंट नंबर 5। Let's apply common sense. Let's apply common sense. Let's apply common sense. Okay, इस बीच गुरप्रीत कौर का एक क्वेश्चन आया है। अच्छा, जब ठीक क्वेश्चन होगा ना तो ऑल्दो लोगों को डांट दूं, पर आई डेफिनेटली टेक इट अप। वैल्यूएशन सिर्फ DCF मेथड से करेंगे क्या? हमेशा नहीं, वैल्यूएशन और भी मेथड से करेंगे, ठीक है। जैसे तुम अगर बात करोगे सर ये बगल या सर ये बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग का क्या वैल्यू होना चाहिए, इस बिल्डिंग का क्या वैल्यू होना चाहिए? तो 2 तरीका है। एक तरीका, इस बिल्डिंग को अगर खरीद के भाड़े पे लगा दे, इस बिल्डिंग को खरीद के अगर भाड़े पे लगा दे तो रेंट आएगा, मेंटेनेंस खर्चा ये सब इलेक्ट और KMC का टैक्सेस ये सब लगेगा, करके अपना क्या कैश फ्लो आएगा, टैक्स फैक्स दे के हर साल वो फोरकास्ट करे और 5-7 साल बाद उस बिल्डिंग को कितने बेच पाएंगे, उसका प्रेजेंट वैल्यू। एक तो ये तरीका है कि बिल्डिंग क्या इनकम जनरेट करेगा, उसके हेल्प से DCF। दूसरा तरीका क्या जरूरत है इसका, इसके अगल बगल में कौन सा बिल्डिंग है, इसके अगल बगल में कौन सा बिल्डिंग है, उनका पर स्क्वायर फीट क्या वैल्यू चल रहा है, उनका पर स्क्वायर फीट क्या वैल्यू चल रहा है, पर ये बिल्डिंग का कंडीशन अगल बगल के बिल्डिंग से बढ़िया है या खराब है। अगर कंडीशन बढ़िया है तो अकॉर्डिंगली पर स्क्वायर फीट का वैल्यू ऊपर होगा, खराब है तो पर स्क्वायर फीट का वैल्यू नीचे रहेगा, ठीक है। लीगल प्रॉब्लम, डॉक्यूमेंट्री प्रॉब्लम, माने वाटर सेवेज, मेनी थिंग्स कुड बी सीन फॉर द पर्पस ऑफ डिसाइडिंग लुक एंड फील। सो अकॉर्डिंगली यू कैन कम आउट विद द वैल्यू विदाउट DCF ना, come out with the value without DCF. That's also a method of valuing. That is also a method of valuing. So I will value a Punjab National Bank with the help of the price at which State Bank of India trades, because are PNB and SBI related? Yes, both are PSU stocks. I will value Infosys with the help of TCS. I will value Infosys with the help of TCS. Similar companies का दाम क्या चल रहा है उसके बेसिस पे वैल्यू करेंगे, ठीक है। ये 2 मेजर अप्रोचेस होते हैं, एक होता है एब्सोल्यूट उसके बेसिस पे और एक होता है कंपेरेबल के बेसिस पे, प्लस और भी मेथड्स है, ठीक है ना। तो गुरप्रीत को एक बार मोटा मोटी जवाब मिल गया होगा। आई होप नेक्स्ट क्वेश्चन ये नहीं आएगा, सारा मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन आई बता सकते हैं क्या? ओके, गुरप्रीत को जवाब मिल गया होगा। अभिषेक कुमार गुरप्रीत के बिहाफ में बोलते थैंक यू सर। और किसी के मन में अगर आ रहा है कि रियल एस्टेट का जो आप बताए ना, मेरे को बहुत मजा आया ऑल पार्ट सुनने में, तो वो मजा क्या अपने को CFA कोर्स से मिलेगा क्या? जोर जोर से मिलेगा। रियल एस्टेट का वैल्यूएशन है, बिकॉज वी आर अंडरस्टैंडिंग ऑल एसेट्स ना, ऑल प्रॉपर्टी टाइप्स, सब चीज का वैल्यूएशन है, ठीक है। ओके, चलो क्या लिखा? लेट्स अप्लाई कॉमन सेंस, दैट इज फर्स्ट प्रिंसिपल्स।
Let's apply common sense, that is first principles. First principles thinking का मतलब होता है forget about every model and all that, अपना एकदम basic logic use करते हैं. Dash. We are valuing the stock of Tata Motors. We are valuing the stock of Tata Motors. Next slide. We have already forecasted the future cash flows. We have already forecasted the future cash flows. Future में क्या cash flows आएगा टाटा मोटर्स से, वो हमने forecast कर दिया. ये मत पूछना कैसे, because हमने actually नहीं किया है. ठीक है? We have already forecasted the future cash flows. Next slide. Now we need to know the discount rate. Next slide में लिखते जाओ. Okay? Now we need to know the discount rate, that is RE. Now we need to know the discount rate, that is RE. Parachange, we recall RE equal to RF plus risk premium. We recall RE equal to RF plus risk premium. RF plus risk premium. Next slide. 10-year Government of India securities, 10-year GOI और 10-year Treasury securities या 10-year GSEC, अलग अलग वर्ड्स है, जानबूझ के वर्ड बोलता हूँ जिससे अवेयरनेस बढ़े. 10-year Government of India securities GOI yields 6.7%. Yields माने provides a return of 6.7%. English language का मतलब है provides a return. Yields, okay, yields 6.7%. Next slide. Long-term bonds of Tata Motors. Long-term bonds of Tata Motors. Long-term bonds of Tata Motors presently yield 10.5%. Long-term bonds of Tata Motors presently yield 10.5%. 10.5%. Next slide. This extra bracket approx additive model, वरना वो चालू कर देगा फैक्टर बाई फैक्टर, नहीं चाह रहा मैं. This extra bracket approx additive model, bracket close, equal to कितना extra? 10.5 minus 6.7 कितना? 3.8. This extra, okay, तो ब्रैकेट में लिखा दिया मैंने एडिटिव मॉडल. ये डाउट नहीं है क्यों माइनस की है, मेरा मन इसके माइनस की है. ठीक है, 3.8%. okay, 3.8% represents dash risk plus dash risk. आपको पता है वरना मैं डैश देता नहीं. represents dash risk plus dash risk, dash risk नहीं, dash risk premium plus dash risk premium, sorry, represents dash risk premium plus dash risk premium. Tell me the dash represents the dash risk premium plus dash risk premium. ये जो एक्स्ट्रा टाटा मोटर्स का बॉन्ड दे रहे हैं, दिस रिप्रेजेंट्स डैश रिस्क प्रीमियम प्लस डैश रिस्क प्रीमियम. आयुष जायसवाल ने बोला है मैच्योरिटी एंड डिफॉल्ट, रॉन्ग बोला है. चिराग ने बोला है मार्केट रिस्क प्रीमियम, और जोर से रॉन्ग बोला है. सताक्षी ने डिफॉल्ट रिस्क प्रीमियम बोला है, थोड़ा राइट बोला है. विधि नहाता ने मैच्योरिटी एंड लिक्विडिटी बोला है, रॉन्ग बोला है. वर्धन ने लिक्विडिटी एंड डिफॉल्ट बोला है, राइट बोला है. लिक्विडिटी रिस्क प्रीमियम एंड डिफॉल्ट रिस्क प्रीमियम. मैच्योरिटी का बात ही कहां से आया? 10 ईयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटी था और मैंने टाटा मोटर्स भी तो लॉन्ग टर्म दिया. दोनों लॉन्ग टर्म. आई डिडंट गिव यू टी बिल्स. मैं अगर टी बिल्स का रिटर्न देता 6.7% और फिर लॉन्ग टर्म टाटा मोटर्स का बॉन्ड, वहां मैच्योरिटी का गैप है. जो 10 साल का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड था और मैंने लॉन्ग टर्म टाटा मोटर्स का बॉन्ड बोला, दोनों का मैच्योरिटी सेम. हाउ कैन यू टॉक अबाउट मैच्योरिटी रिस्क प्रीमियम? दिस इज लिक्विडिटी प्लस डिफॉल्ट. व्हाट? लिक्विडिटी रिस्क प्रीमियम एंड डिफॉल्ट रिस्क प्रीमियम. आपको लिख लेना चाहिए जहां डैश डैश था. लिक्विडिटी रिस्क प्रीमियम एंड डिफॉल्ट रिस्क प्रीमियम, और मन में सोच लेना चाहिए उसका मतलब, नॉट डेफिनेशन.
लिक्विडिटी रिस्क प्रीमियम एंड डिफॉल्ट रिस्क प्रीमियम। लिक्विडिटी रिस्क प्रीमियम मतलब सर अगर हम बाई कर लिए टाटा मोटर्स का बॉन्ड और बेचने जाएंगे थोड़ा सा अटक सकते हैं, इजीली मेरा बिकेगा नहीं, पर बाई कर लिए गवर्नमेंट भारत सरकार का बॉन्ड 1 सेकंड में बिक जाएगा। दैट इज लिक्विडिटी, कि भारत सरकार के बॉन्ड में लिक्विडिटी है, जब चाहे निकल सकते हैं। टाटा मोटर्स के बॉन्ड में फंसने का स्कोप है, 2-3 रुपया नीचे दाम पे बेचना पड़ेगा बेचने के चक्कर में। लिक्विडिटी रिस्क प्रीमियम, अटकने का रिस्क, ओके, द फैक्ट दैट यू विल बी स्टक अप, उसका रिस्क कंपेयर्ड टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। और डिफॉल्ट तो ऑब्वियस, ऑफ कोर्स टाटा मोटर्स कैन डिफॉल्ट, ठीक है। नहीं सर रतन टाटा कंपनी कभी डिफॉल्ट नहीं करेगा, बहुत सारे हो गए, ठीक है, जिन्होंने डिफॉल्ट किया है, तो इसलिए देयर इज अ ऑफ कोर्स लो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट, बट देयर इज डेफिनेटली टेक्निकली अ चांस ऑफ डिफॉल्ट उन दोनों की वजह से, समझ गए। तो लिक्विडिटी एंड डिफॉल्ट रिस्क प्रीमियम, मैंने आप रिवाइज करना चाहो तो हर चीज रिलेटेड है, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ हाउ डीप यू गो, फुल स्टॉप। आगे पैरा चेंज, but we are talking about Tata Motors stock, पैरा चेंज, but we are talking about Tata Motors stock। ये first principles thinking चल रहा है, you have heard this language or not I don't know, first principles thinking, this is what every people want when you sit on the interview table, कि okay you don't know about the stock, I am giving you a situation, let me see how do you think। McKinsey interview, any interview, consultancy interview, they want to check your first principles thinking, not your general knowledge, कि उल्टा पुल्टा स्टॉक का नाम ले लेगा, बोलेगा तेरे को पता है नहीं पता है बाहर निकल, this doesn't happen। बोला ठीक है तेरे को नहीं पता, ठीक है तू फ्रेशर है, चल मैं तेरे को एक पर्टिकुलर वो देता हूं, अब तू बता तू कैसे सोचेगा, योर थॉट प्रोसेस, ठीक है क्या। But we are talking about. But we are talking about the stock of Tata Motors, the stock of Tata Motors, dot dot dot, obviously a stock has even higher risk, a stock has even higher risk, a stock has even higher risk। ये पहली बात हो चुका है कि उसको कुछ भी पे करना टाटा मोटर्स का लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ठीक है ना, जो मिलेगा बचा कुचा मिलेगा, ऑफ कोर्स स्काई इज द लिमिट, बट देन रिस्क इन्वॉल्वड, रेसिडुअल क्लेम, काफी बार डिस्कशन हो चुका, आप लोग 11th में पढ़ चुके, ठीक है ना। हायर रिस्क डॉट डॉट डॉट, एडिशनल प्रीमियम, एडिशनल रिस्क प्रीमियम रिक्वायर्ड, एडिशनल रिस्क प्रीमियम रिक्वायर्ड, additional risk premium required, additional risk premium required, dash, suppose we take extra 2%, देखो suppose we take extra 2%, suppose we take extra 2%, suppose we take extra 2%, next slide। So RE equal to 6.7 plus 3.8 plus 2, RE equal to 6.7 plus 3.8 plus 2 equal to what? 12.5%. 12.5%. 6.7 plus 3.8 plus 2, 12.5%. Para change. Obviously, we are not satisfied. Obviously, we are not satisfied. Obviously, we are not satisfied. एक बंदा वहां पे पागल हो गया लाइन में, चिराग श्याम सुखा केवल बोल रहा है MRP 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 MRP, माने मार्केट रिस्क प्रीमियम। तो चिराग इसी को बोलते हैं डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग एंड जो आपको नॉलेज है। आपको पता है RF माइनस RF के बारे में, तो आप बोलना चाह रहे हो आइए ना, उस पर आइए ना, नहीं आएंगे, मेरा मन रुक के आएंगे। हम नहीं जानते RF माइनस RF के बारे में, कोई फर्स्ट क्लास आज कर रहा है, उसको नहीं पता व्हाट इज RF माइनस RF, ठीक है ना। दैट इज द मीनिंग ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग। या देखो, ऑब्वियसली वी आर नॉट सैटिस्फाइड, obviously we are not satisfied and we need a model, and we need a model or framework, and we need a model or framework, we need a model or framework for determining risk premium. We need a model or framework for determining risk premium. Full stop. There are two such models.
There are two such models. There are two such models. Dash. Para change first bullet. CAPM. CAPM bracket में or its practical proxy that is market model, or its practical proxy that is market model, because चैप्टर का नाम है क्या था? CAPM मार्केट मॉडल एंड, ठीक है ना? तो CAPM और मार्केट मॉडल सेम है, तो इसलिए इसको दो ट्रीट नहीं कर सकते, वो एक कॉम्प्रोमाइज है थोड़ा सा मार्केट मॉडल. CAPM और इट्स प्रैक्टिकल प्रॉक्सी मार्केट मॉडल ब्रैकेट क्लोज. दूसरा सेकंड बुलेट आर्बिट्राज प्राइसिंग मॉडल. सेकंड बुलेट आर्बिट्राज प्राइसिंग मॉडल APM. आर्बिट्राज प्राइसिंग मॉडल APM. ये दोनों मॉडल्स. तो आपको नाम का पता चल गया कि नाम जो था CAPM मार्केट मॉडल एसेट प्राइसिंग मॉडल, जो नाम दिया हुआ था, ठीक है ना? तो दैट इज व्हाट द चैप्टर इज ऑल अबाउट. ये हमने कॉन्टेक्स्ट सेट किया है कि दिस इज व्हाट वी आर डूइंग, ठीक है ना? ओके. अब चैप्टर में ऑब्वियसली ब्रॉडली दो पार्ट्स हैं. एक पार्ट डिस्कशन है CAPM का, एक पार्ट है डिस्कशन APM का, ठीक है? दो पार्ट्स हो गए चैप्टर का, और उसके अंदर फिर सब पार्ट्स. हेडिंग दे दो पार्ट 1 CAPM. पार्ट 1 CAPM. पार्ट 1 CAPM. पॉइंट नंबर 1, कॉमन सेंस पिकअप. वंस अगेन CAPM को पिकअप कर रहे हैं फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल्स. कॉमन सेंस पिकअप. कॉमन सेंस पिकअप. CAPM का कॉमन सेंस पिकअप क्या है, सुन लेना. अगर आप कोई भी कंपनी के, खासकर ग्लोबल कंपनीज के, इफ यू do GPT, you Google or you go into the website and you try to search for the shareholders, and major shareholders of a company like Alphabet, Google, major shareholders of a company like Microsoft, major shareholders of a company like Tesla, major shareholders of a company like, you know, understand? अगर आप सर्च करोगे तो आपको दिखेगा जो टॉप 5 टॉप 10 shareholders है ना, apart from the founders, एक बार उनको छोड़ दे तो they will be big institutions. There will be big institutions, the likes of BlackRock, okay, mutual funds, big institutions. And ये जो big institutions हैं, they hold a single stock or they hold a diversified portfolio. Very, very important, please. They do not hold a single stock, they hold a diversified portfolio. बहुत सारे कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जो अलग अलग सेक्टर्स में बिलोंग करते हैं. कोई सीमेंट का कंपनी, कोई स्टील का कंपनी, कोई IT का कंपनी, कोई ओके अलग अलग सेक्टर्स की कंपनी में. इतने सारे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने की वजह से इनको कभी भी अनसिस्टमैटिक रिस्क जो है उसका डर नहीं होता. कौन सा रिस्क? अनसिस्टमैटिक, सॉफ्टली कंपनी स्पेसिफिक रिस्क, इंटरनल रिस्क. दे आर नॉट अफ्रेड अबाउट इंटरनल रिस्क कि इतना सारा स्टॉक्स है, इसके अंदर कुछ हो गया तो कोई बात नहीं, इसके अंदर कुछ खराब हुआ तो दूसरे के अंदर कुछ बढ़िया हो जाएगा. इतने सारे स्टॉक्स में एक कंपनी के अंदर में कुछ खराब हो गया, ठीक है, तो पक्का दूसरे कंपनी के अंदर में उस समय कुछ बढ़िया हो जाता है. ऐसा ही होता है, ठीक है ना? तो दैट अनसिस्टमैटिक कंपनी स्पेसिफिक फैक्टर्स दे कैंसल आउट, प्लस माइनस कैंसल आउट. दे आर कंसर्न्ड कि जब मार्केट इकोनॉमी में कुछ गड़बड़ होगा, जब इकोनॉमी में कुछ गड़बड़ होगा तब तो सारे के सारे स्टॉक घुसेंगे. तो नो मैटर तुमने कितना बड़ा पोर्टफोलियो बना लिया, पूरा पोर्टफोलियो तुम्हारा जाएगा, वो कटेगा नहीं, पूरा पोर्टफोलियो तुम्हारा नीचे एक साथ जाएगा. तो वो कितना नीचे जाएगा ना, उससे तुमको मतलब होता है. और वो डिपेंड करता है तुमने जो स्टॉक्स पिकअप किया है वो स्टॉक्स इकोनॉमी पे कितना सेंसिटिव है, इकोनॉमी से कितना रिलेट करते हैं. जैसे सीमेंट, ऑटोमोबाइल, ये लोग इकोनॉमी से बहुत ज्यादा रिलेटेड है. इकोनॉमी डाउन तो इन दैट केस दे आल्सो डाउन. Whether you talk about the aviation sector, automobile sector, you can feel it कि यार इतना ज्यादा ट्रैवल्स नहीं करेंगे, कम ट्रैवल्स करेंगे. अगर पैसा कम है, अपना एक बार रिसेशन हो गया
गाड़ी एक बार नहीं चेंज करेंगे, 2 साल बाद चेंज कर लेंगे, या लेने का मन था तो नहीं लेंगे, 2 साल बाद ले लेंगे। ठीक है, इसको कितने बार बोल दिया मैं, दीज आर व्हाट टाइप ऑफ कंजम्पशन, जिनको डेफर किया जा सके। कौन सा कंजम्पशन बोलते हैं इनको? डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन, डिस्क्रिशनरी, जिनको छोड़ा जा सकता है, विच इज नॉट कंपल्सरी, डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन। तो ये उस तरह का है ना। तो ये जो भी डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन है, जो इकोनॉमी से बहुत ज्यादा रिलेटेड है, ठीक है, उनमें इकोनॉमी का कुछ गड़बड़ होने से बहुत जोर से नीचे जाता है। इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन हाउ मच फाइनेंशियल लेवरेज आर दे सिटिंग अपॉन, यानी वो लोग कितना डेट लेके बिजनेस कर रहे हैं। बिकॉज यू नो कि डेट लेके बिजनेस करने से द कॉन्सिक्वेंसेस विल बिकम एम्प्लीफाइड। बिकॉज तुम डेट लेके बिजनेस कर रहे हो तो तुम्हारा बैलेंस शीट तो 50,000 करोड़ का है, खुद का पैसा 10,000 करोड़ है, तो 5 गुना बिजनेस कर रहा है। तो जो भी इकोनॉमी में हुआ, एक तो आप सिक्लिकल बिजनेस हो, डाउन गए, और दूसरा उसका इम्पैक्ट फिर 5 टाइम्स हो गया, बिकॉज इक्विटी तो केवल 10,000 है, और 50,000 पे जो हो रहा है, जो गेन लॉस हो रहा है 50,000 पे हो रहा है, डिवाइड बाय 10,000, तो दैट रियली मैग्निफाइज इट। तो अकॉर्डिंगली इस तरह की कंपनीज जो कि सिक्लिकल बिजनेस में है एंड जिनका डेट इक्विटी हाई है, उनसे कंसर्न, वो एक रिस्क है। पर जो कंपनीज का बिजनेस से ज्यादा, इकोनॉमी से ज्यादा रिलेशन नहीं है, यूटिलिटीज, क्या बोला, यूटिलिटीज, वी आर टॉकिंग अबाउट अ पावर ग्रिड, ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट कंज्यूमर स्टेपल कंपनी, जो एफएमसीजी कंपनी, HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर, जो टूथपेस्ट ये सब सेल करता है, तो अल्टीमेटली वो तो बाई करना पड़ेगा, या फार्मास्यूटिकल कंपनी। इन सब कंपनी का इकोनॉमी से रिलेशन उतना नहीं है। प्लस अगर इनमें लेवरेज कम है, अगर इनमें लेवरेज भी कम है, डेट भी कम है, तो अकॉर्डिंगली आपको पता है कि इकोनॉमी जब गिरा तो ये स्टॉक्स ज्यादा नीचे नहीं गिरेंगे। ठीक है, तो रिस्क को देखा जाता है उनके पर्सपेक्टिव से। अब कोई बोलेगा क्यों उनके पर्सपेक्टिव से, मेरे पापा है वो तो 4-5 स्टॉक्स ही बाई करते हैं, या मैं तो 1 ही 2 स्टॉक्स बाई करूंगा। तो पॉइंट इज दैट कौन बाजार चला रहा है, तुम, चिंदी, या वो लोग ना। अल्टीमेटली बाजार जो मूव कर रहा है वो तो वो लोग मूव कर रहे हैं, एंड दे आर ऑलवेज होल्डिंग डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। दे आर नॉट कंसर्न्ड विद अनसिस्टमैटिक रिस्क, दे आर कंसर्न्ड विद व्हिच रिस्क, systematic risk. Which risk? Systematic. Systematic risk मतलब risk which affects one particular company, or risk which affects all companies with unequal sensitivity. Affect all को करता है but unequal sensitivity. तो basically we need to know कि हर एक स्टॉक इकोनॉमी से कितना रिलेटेड है, हर एक स्टॉक इकोनॉमी से कितना सेंसिटिव है, इकोनॉमी को चेंज होने से हर एक स्टॉक कितना चेंज होगा, ये अपने को जानना है। वो सेंसिटिविटी इज द क्वांटिटी ऑफ रिस्क, सेंसिटिविटी इज द क्वांटिटी ऑफ रिस्क। अभी बोलते समय मैंने इकोनॉमी 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 4-6 बार बोल दिया, समझ में सबको आ रहा था इकोनॉमी, बट हाउ डू यू क्वांटिफाई इकोनॉमी को? क्वांटिफाई कैसे करें? क्वांटिफाई, मैं बोला इकोनॉमी 1 से चेंज हुआ तो क्या बोल रहे हैं? इकोनॉमी 1 से चेंज हुआ तो मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं? शायद आप जीडीपी ग्रोथ रेट का बात कर रहे हैं, शायद आप इन्फ्लेशन का बात कर रहे हैं, शायद आप इंटरेस्ट रेट का बात कर रहे हैं, शायद आप ऑयल प्राइस का बात कर रहे हैं, क्या चीज का बात कर रहे हैं? इकोनॉमी 1 से चेंज हुआ तो व्हाट इज इकोनॉमी? दैट्स अ लूप होल इन द सेंटेंस। तो इकोनॉमी को कैप्चर करने के लिए CAPM इंट्रोड्यूस्ड समथिंग कॉल्ड द मार्केट पोर्टफोलियो। व्हाट? मार्केट पोर्टफोलियो। अपने उसको मान लेते हैं सेंसेक्स या निफ्टी इंडिया में, कि सेंसेक्स रिप्रेजेंट्स द इकोनॉमी, बिकॉज सेंसेक्स में सारी बड़ी कंपनीज है कि छोटी कंपनीज? बड़ी कंपनीज है, एंड सारे एक सेक्टर से कि बहुत सारे सेक्टर से? बहुत सारे सेक्टर से। ठीक है, तो एक तरह से बोला जाता है सेंसेक्स इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इंडियन इकोनॉमी और निफ्टी इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। तो अगर सेंसेक्स 1% बढ़ा, ये तो समझ में आ रहा है, हाँ ठीक है, वी कैन चेक इट आउट। निफ्टी 1% गिरा, दैट वी कैन चेक इट आउट। तो सेंसेक्स या निफ्टी से एक एक स्टॉक का सेंसिटिविटी पता लगाते हैं। तो जिस चीज से पता लगा रहे हैं ना, जो रेफरेंस पॉइंट है उसको 1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? 1, बिकॉज निफ्टी या सेंसेक्स भी तो वॉलेटाइल है, तो उसका जो रिस्क है उसको 1 मान लिए। क्या मान लिए? 1। निफ्टी या सेंसेक्स का जो रिस्क है वो 1 है। अब बाकी का रिस्क निफ्टी या सेंसेक्स के मुकाबले निकालेंगे। ठीक है, और एट द सेम टाइम क्या करेंगे, जब मैं बोल रहा था ना RF प्लस रिस्क प्रीमियम, रिस्क प्रीमियम इज लाइक पर यूनिट ऑफ रिस्क के लिए कितना रिटर्न चाहिए, कॉम्पेंसेशन इनटू यूनिट ऑफ रिस्क, 4 into 2 4 into 3 याद है? पर यूनिट ऑफ रिस्क के लिए आपको चाहिए 4%। तो अगर
स्टॉक में 2 है रिस्क तो क्या होगा 8, 3 है तो क्या होगा 12। तो हमें 2 ही तो चीज चाहिए, एक चाहिए पर यूनिट ऑफ रिस्क के बदले कितना रिटर्न, और दूसरा हमको चाहिए क्वांटिटी ऑफ रिस्क, क्वांटिटी ऑफ रिस्क। तो यहाँ पे 3-4 चीजें आ गई। सबसे मेन चीज आ गई कि स्टॉक का पूरा रिस्क से मतलब नहीं, स्टॉक का केवल कौन सा रिस्क से मतलब है, सिस्टमैटिक। अभी तक इक्वेशन चल रहा था RE इक्वल टू RF प्लस RP, RE इक्वल टू RF प्लस RP। अब इक्वेशन हो गया RE इक्वल टू RF प्लस SRP, RE इक्वल टू RF प्लस SRP, सिस्टमैटिक रिस्क प्रीमियम। ये जो है ना तुम्हारा घर पे कि तुम ये सोच के कि सर रिस्क प्रीमियम के बाद सिस्टमैटिक रिस्क प्रीमियम जो लिखा है, ये जो जर्नी है, इसका जो लॉजिक बोला डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो वगैरह वगैरह, वो बहुत ही फंडामेंटल है, वो जानना जरूरी है इन ऑल चैप्टर्स। ठीक है, तो मैंने उस पर फटाफट नहीं जाना है, उस पर अपने माथे में दे देना है टाइम। ठीक है, कि व्हाई डू वी टेक ओनली सिस्टमैटिक रिस्क, बिकॉज द मार्जिनल इन्वेस्टर्स, द बिगर इन्वेस्टर्स, they are the ones who hold diversified portfolio, they are the ones who rule the market, and those people, they are not investing in single stocks or concentrated portfolio, they are holding a diversified portfolio in which unsystematic risk is cancelled out. Therefore the only risk which matters is what systematic. यहीं पे बताना सही होगा that इस पूरे के पूरे लॉजिक में सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस पूरे फ्लो में ये था, जैसे ही मैंने इकोनॉमी को बोला सेंसेक्स, इकोनॉमी को जब सेंसेक्स बोला ना, दैट वाज द बिगेस्ट ब्लंडर इन दिस एंटायर। बट देयर इज नो अदर चॉइस। कोई बोलेगा सर बड़ा इंडेक्स ले लीजिए, इसमें 500 स्टॉक्स है, 1000 स्टॉक्स है, तब भी तो 1000 ही है। देयर इज रसेल 2000 इंडेक्स इन यूएस जिसमें 2000 स्टॉक्स है। ठीक है, देयर इज मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल इंडेक्स, MSCI ग्लोबल इंडेक्स। क्या बोला? MSCI ग्लोबल इंडेक्स। सुनना, मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल कंपनी का नाम हो गया, उसने ग्लोबल इंडेक्स बना दी। यू कैन अंडरस्टैंड ग्लोबल इंडेक्स में डू वी हैव कंपनीज फ्रॉम यूएस और अक्रॉस द ग्लोब, फ्रॉम चाइना, फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम पाकिस्तान, फ्रॉम एवरी कंट्री। ओके, मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल इंडेक्स पर क्या उसमें भी सारे कंपनीज हैं? नहीं। चलो मान लेते हैं कि ऐसा इंडेक्स बनाए जिसमें सारे कंपनीज हैं, तो भी पूरा नहीं हुआ। बिकॉज व्हाट अबाउट अनलिस्टेड कंपनीज जो लिस्टेड नहीं है, SSEI नहीं है उसके अंदर, तो दैट इज नॉट कैप्चर्ड। इकोनॉमी का तो वही पार्ट है। सर चलिए अनलिस्टेड को भी ले लेते हैं, तो प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप नहीं है, उनको भी ले लेते हैं, तो उस केस में ह्यूमन कैपिटल नहीं है। ह्यूमन कैपिटल मतलब एक एक पर्सन जो अपने स्किल से कमा रहा है ना, जो कमा रहा है, तुम लोग जो अर्न करोगे वो भी तो इकोनॉमी का पार्ट है, तुम लोग नहीं हो उसके अंदर। तो उसके से बाद भाई चाहते क्या हो? तो चाहते वो है जो पॉसिबल ही नहीं है। तो CAPM के बदले मार्केट मॉडल लिखा है ना, और इट्स प्रॉक्सी मार्केट मॉडल। वो मार्केट मॉडल मेनली इसीलिए आता है, दैट्स इट्स अ लिमिटेशन CAPM का, कि CAPM है कहाँ अल्टीमेटली। तो ट्रू मार्केट पोर्टफोलियो डज नॉट एग्जिस्ट, वी वर्क विद प्रॉक्सीज। एंड देयरफॉर उसके बाद आएगा APT, बोलेगा हटा साल की घटा, क्या होता है बत्ती बुझा, व्हाटएवर। ठीक है, वो बोलेगा हम लोग इकोनॉमी को लेंगे GDP ग्रोथ रेट से, इंटरेस्ट रेट से, ऑयल प्राइस से, इन्फ्लेशन से, उसको बोलते जाना और बता क्या, बाद में बोलते हैं अभी को नहीं पता जो तुम्हारा। APT मॉडल जो है वो बोला आप अपने मन से फैक्टर्स ले लीजिएगा, अपने मन से फैक्टर्स ले लीजिएगा। क्या प्लस भी है माइनस भी है? माइनस क्या है? माइनस की है तो गलत बात है, बताया ही नहीं। और प्लस क्या है? हर इकोनॉमी में स्ट्रक्चर अलग होता है। कोई सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी है चाइना जैसे, उसमें सर्टेन फैक्टर्स आर नॉट इंपॉर्टेंट। कोई बहुत ही डेमोक्रेटिक इकोनॉमी है, डेवलप्ड यूएस के जैसे, कोई इंडिया के जैसे डेमोक्रेटिक है बट एट द सेम टाइम उतना डेवलप्ड नहीं है। तो हर इकोनॉमी में तो बराबर फैक्टर्स इंपॉर्टेंट नहीं होगा ना। तो एक तरह से APT gave the flexibility, it said it's a craft in terms of finding out the model for required rate of return. लास्ट में एक चीज बता दूं, लोग जो करते हैं वैल्यूएशन, बात है मैं क्या बोल रहा था क्लास में, तू वैल्यूएशन क्यों कर रहा है? या तो खुद के लिए मेरा पैसा, या फिर बाई साइड, और या फिर क्या सेल साइड। ये सेल साइड वाले पार्ट को सारा डेकोरेशन करना है, सेल साइड वाले पार्ट को सारा सजा सजा के दिखना है कि देखो मैं कितना बढ़िया रिपोर्ट बनाया हूं, देखो कत सुंदर। सेल साइड वाले, ये सेल साइड वाले को हटा देना
तो बाई साइड वाला और ओन पैसे में ये बात नहीं आता है कि तुम क्या कोई मॉडल से निकाला है क्या. इफ योर गट इंस्टिंक्ट्स आर स्ट्रॉन्ग एंड यू डू समथिंग, सुना प्लीज, सीमेंट सेक्टर है उसका एक, सॉरी टाटा मोटर्स ऑटोमोबाइल, तो टाटा मोटर्स ऑटोमोबाइल कंपनी इंडिया में है. जितना भी ऑटोमोबाइल कंपनीज इंडिया में हैं, मैंने उन सब का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न बैक कैलकुलेशन से निकाला है. बैक कैलकुलेशन समझे, जैसे शुरू में आज क्लास में जब मैंने 500 500 500 बोला था और शायद 1800 बोला था, तुम लोग 12.05 निकाला था, याद है? वो तुम लोग बैक कैलकुलेशन से निकाला, दाम दिया हुआ है तो भी तो हम लोग आईआरआर निकाल सकते हैं. तो मैंने जितने भी ऑटोमोबाइल कंपनीज इंडिया में उन सब का बैक कैलकुलेशन से वो निकाल लिया. तो उन सब का सेम आया कि अलग अलग आया? अलग अलग आया. तो क्या आया सुन लो, इंडिया में जो ऑटोमोबाइल कंपनीज है उनका जो आरई आया वो आया 11% से लेके 18%, मन से बोल रहा हूं, 11 से लेके 18% आया. ठीक है, किसी का 11, किसी का 18, किसी का 17, किसी का 16. ये उसका एक डिस्ट्रीब्यूशन बन गया कंपनीज और उनका वो क्या बोलते हैं रिटर्न्स, डिस्ट्रीब्यूशन बन गया. अब वो डिस्ट्रीब्यूशन का मैंने मीन मीडियन मोड कुछ भी निकाल लिया. सपोज तुमने मीन निकाल लिया, मीन आया 14.6%. क्या आया? 14.6%. अब मैं सोच रहा हूं यार टाटा मोटर्स जो है उसमें जो रिस्क है वो इन लोग से रिलेटेड है क्या? है, बिकॉज टाटा मोटर्स जो धंधा कर रहा है ये लोग भी वही धंधा कर रहे हैं, तो टाटा मोटर्स का रिस्क इन लोग से रिलेटेड है. पर टाटा मोटर्स का तो ब्रांड है, टाटा मोटर्स तो ज्यादा स्टेबल है, टाटा मोटर्स में डेट कम है या ज्यादा है. तो अब मैं वो बुद्धि लगा के जो 14.6 आया ना उसको खुद से मन से प्लस माइनस कर देता हूं. मतलब आई डिसाइड टू टेक 13.6. यू कैन आर्ग्यू कि सही तो चीटिंग, आप -1 का कोई मॉडल नहीं बना रहे, बट खुद का पैसा जब लगा रहे हैं तो दिखाना किसको है? whom do you have to? So you can take a decision for yourself based on common sense, not doing a model. But when you go to the sell side, आपको बाहर निकाल देगा कि तेरे मन में आया -1, बिकॉज वो तो रिपोर्ट जाने वाला है ना दुनिया के पास. इट हैज टू बी प्रेजेंटेबल. एंड फॉर यू स्टूडेंट्स द फर्स्ट थिंग वुड बी दैट मी गेटिंग अ जॉब. बाय साइड जॉब इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, सेल साइड जॉब इज इजियर, वेल्थ मैनेजमेंट इज स्टिल इजियर. तो इन दैट केस योर जर्नी में स्टार्ट फ्रॉम देयर. तो CFA Institute doesn't know where your journey will start from. Therefore, they are trying to teach you holistically everything, even the judgmental part, so that later on you will have to carve out your own thing yourself. समझ गए? तो RE is equal to RF plus systematic risk premium. Why systematic? Very, 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 very important. How to capture systematic? By capturing the economy. How to capture the economy? CAPM says market. ठीक है तो? APM says market does not exist, market portfolio does not exist. I will take अलग अलग factors. ठीक है ना? तो although मैंने 5 मिनट 10 मिनट बहुत फटाफट बोल दिया होगा, बट चैप्टर का जो क्रक्स है ना वो बहुत बढ़िया से बोला. ठीक है ना? Let's write it down. क्या लिखे थे हमने? कॉमन सेंस पिकअप ऑफ CAPM. तो लिखिए फर्स्ट बुलेट. Once again, RE equal to RF plus risk premium. Second bullet. Types of risk. उससे 2 एरो निकालो. लेफ्ट साइड में सिस्टमैटिक, राइट साइड में अनसिस्टमैटिक. लेफ्ट साइड में सिस्टमैटिक, राइट साइड में अनसिस्टमैटिक. सिस्टमैटिक अनसिस्टमैटिक. इनका जो और नाम है ना, इनको और नाम क्या यूज करते हैं वो भी जानना जरूरी है. और एक चीज बता दो, ये सबसे ज्यादा डीपली पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में है. कहां पे? मैनेजमेंट में. 2 चैप्टर्स, वन इज रिस्क एंड रिटर्न पार्ट 1, वन इज रिस्क एंड रिटर्न पार्ट 2. उसके अंदर सबसे ज्यादा टाइम देके है. यहां पर उतना टाइम नहीं दे रहे हैं उस पार्ट के अंदर जितना वहां देंगे. ठीक है ना? तो लेफ्ट साइड में तुमने जो सिस्टमैटिक रिस्क का लिख लगा उसका और नाम है, तो ऑब्लिक देके और नाम लिखो. सिस्टमैटिक रिस्क ऑब्लिक मार्केट रिस्क ऑब्लिक इकोनॉमी वाइड रिस्क ऑब्लिक
नॉन डाइवर्सिफिएबल रिस्क, सबसे इंपॉर्टेंट नाम, नॉन डाइवर्सिफिएबल रिस्क, नॉन डाइवर्सिफिएबल रिस्क। स्टूडेंट का ये पर्पस है कि वो हर एक नाम का रीजनिंग सोचे कि क्यों नाम दिए। प्लीज थिंक, प्लीज रिक्वेस्ट। सिस्टमैटिक है बिकॉज ये सबको अफेक्ट करता है, मार्केट बिकॉज अपने सेंसेक्स से रिलेट करते हैं, इकोनॉमी बिकॉज इकोनॉमी में कुछ होगा तो स्टॉक में क्या होगा। नॉन डाइवर्सिफिएबल, डाइवर्सिफाई करना मतलब पैसा फैलाना, फैलाओ 10 स्टॉक, 20 स्टॉक, 50 स्टॉक, 1000 स्टॉक, 10,000 स्टॉक, कुछ भी कर लो, इकोनॉमी गड़बड़ हुआ तो तुम भी डूबेगा। यानी तुम इस रिस्क को डाइवर्सिफिकेशन से किल नहीं कर सकता है, एक ही तरह से किल कर सकता है, पूरा का पूरा पैसा भारत सरकार में लगा। इफ यू इन्वेस्ट इन गवर्नमेंट बॉन्ड्स देयर इज ओनली वन वे ऑफ किलिंग इट। ठीक है, तो और एक वे है, हिंट दे देता हूं, फॉर हेज फंड्स हु क्रिएट लॉन्ग शॉर्ट पोर्टफोलियोज। व्हाट पोर्टफोलियो? लॉन्ग शॉर्ट। जैसे मैंने स्टॉक बाय किया, दूसरा स्टॉक सेल किया, तो जो सेल किया और जो बाय किया, फिर बाय सेल किया मैंने, ए को बाय किया, बी को सेल किया, करेक्ट। इकोनॉमी जोर से गिरा, इकोनॉमी जोर से गिरा, दोनों गिरा, इकोनॉमी जोर से गिरा, दोनों गिरा। ए को बाय किया था वो गिरा, नुकसान, बी को सेल किया था वो गिरा, फायदा। बी को सेल किया था, तो अगर वो गिरा तो मैं तो नीचे दाम पे खरीद के लौटा दिया ना। आई यू अंडरस्टैंडिंग? था सबका पॉजिटिव रिस्क, बट मैंने उसको शॉर्ट कर दिया था ना, तो मेरे लिए उल्टा हो गया। तो लॉन्ग शॉर्ट करने से कट सकता है, या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में हो सकता है। तो जब लिखते हैं नॉन डाइवर्सिफिएबल, दिस लैंग्वेज अज्यूम्स लॉन्ग ओनली पोर्टफोलियो। व्हिच पोर्टफोलियो? लॉन्ग ओनली, मतलब शॉर्ट करना अलाउड नहीं है। जैसे म्यूचुअल फंड्स को इंडिया में शॉर्ट करना अलाउड नहीं है। म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया आर नॉट अलाउड टू शॉर्ट। देयर आर मेनी इंस्टीट्यूशंस व्हिच आर नॉट अलाउड टू शॉर्ट। ठीक है, तो देयरफॉर उस एक्सट्रीम केस को जो लॉन्ग शॉर्ट है, हेज फंड उस पे नहीं जा रहे हैं, इन दैट कॉन्टेक्स्ट इट्स नॉन डाइवर्सिफिएबल। ओके, नॉन डाइवर्सिफिएबल को एरो देके वहीं पे हिंट लिख लो, उसका मतलब नॉन डाइवर्सिफिएबल को वहीं पे हिंट लिख लो। कैन नॉट बी किल्ड बाय डाइवर्सिफिकेशन, कैन नॉट बी किल्ड बाय डाइवर्सिफिकेशन, कैन नॉट बी किल्ड बाय डाइवर्सिफिकेशन। So there's a student by the name of Deep Galgeti. He or she is saying that defensive stock will also affect systematic risk. उनका क्वेश्चन है defensive stock will also affect systematic risk. तो defensive stock माने वो क्या बोलना चाह रहे हैं? वो बोलना that person is trying to talk about क्या बोलते हैं, टाटा मोटर्स, और trying to talk about say Dr. Reddy's, Dr. Reddy's. तो she is saying or he is saying that Dr. Reddy's जो है, क्या वो भी सिस्टमैटिक में आएगा, उसका रिस्क भी सिस्टमैटिक है? आंसर इज यस। मैंने ये नहीं बोला कि रेडवैक्सी या डॉक्टर रेड्डीज का इकोनॉमी से इफेक्ट नहीं होता है, मैंने बोला कम इफेक्ट होता है, मैंने बोला कम इफेक्ट होता है। आई डेंट से उनका इफेक्ट नहीं होता, सबका इफेक्ट होता है, किसी का कम किसी का ज्यादा। जिसका ज्यादा होता है उसमें सिस्टमैटिक रिस्क प्रीमियम ज्यादा चाहिए, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा होगा। जिसका कम होता है उसमें रिस्क प्रीमियम कम से डिमांड करेंगे, वैल्यू करते सब। ठीक है ना? ओके, राइट साइड में, राइट साइड में क्या था? अनसिस्टमैटिक, ऑब्लिक कंपनी स्पेसिफिक, ऑब्लिक कंपनी स्पेसिफिक। कंपनी स्पेसिफिक से एक गड़बड़ हो जाता है कि आदमी इंडस्ट्री समझ नहीं पाता है, तो लिख दो ब्रैकेट में ऑल्सो इंडस्ट्री, कंपनी स्पेसिफिक ब्रैकेट ऑल्सो इंडस्ट्री, ऑल्सो इंडस्ट्री ब्रैकेट क्लोज। मैंने बोलना चाह रहा हूं, अगर एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में कुछ हुआ, एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में कुछ हुआ, तो वो उस इंडस्ट्री को ही मेजरली इफेक्ट करेगा, तो दैट रिस्क इज आल्सो कंसीडर्ड टू बी अनसिस्टमैटिक। ठीक है ना? तो इट्स कॉल्ड कंपनी स्पेसिफिक, बट उससे गलती धारणा नहीं आ जाए, इंडस्ट्री को भी उसके अंदर लेते हैं, ब्रैकेट क्लोज। ऑब्लिक, ऑब्लिक क्या बोलते हैं? डाइवर्सिफिएबल रिस्क, डाइवर्सिफिएबल रिस्क, डाइवर्सिफिएबल रिस्क। अब आपको नाम पता चल रहा है डाइवर्सिफिएबल क्यों? बिकॉज नॉन डाइवर्सिफिएबल क्यों लिखे थे? क्यों लिखे थे वहां नॉन डाइवर्सिफिएबल? कैन बी किल्ड बाय डाइवर्सिफिकेशन। यहाँ डाइवर्सिफिएबल का मतलब क्या है? कैन बी किल्ड। क्यों ले रहे हो इस रिस्क को? बदलो इस रिस्क को, इसको रिस्क, इस रिस्क को लेना गुनाह है। ठीक है ना? ऑब्लिक, ऑब्लिक इडियोसिंक्रेटिक रिस्क, IDIO
IDIOSYNCRATIC, 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 idiosyncratic risk. तो idiosyncratic risk का मतलब वही होता है कि जो इट्स जस्ट हैपनिंग्स, मतलब अलग तरीके से हो रहा है, किसी में ये, किसी में वो, किसी में ये, किसी में वो, दैट्स कॉल्ड idiosyncratic. ठीक है तो, और इस मेन idiosyncratic का मतलब है इतने सारे कंपनीज में किसी में बढ़िया किसी में खराब हो ही रहा होगा, ठीक है, तो वो पोर्टफोलियो में कट जाएगा, तो आप चिंता मत करो अगर पोर्टफोलियो बना रहे हो. So I like the word idiosyncratic because it is supposed to give you that feeling that in the portfolio it's happening haphazardly, so it will cancel out. That feeling becomes strengthened. Okay, idiosyncratic. Okay. तो अब देखो टाइप्स ऑफ रिस्क. अब देखो चार्ट के बाहर जाके, investors are assumed to be rational. Investors are assumed to be rational. Investors, वो जो चार्ट लगाए थे लेफ्ट और राइट उसके बाद, इन्वेस्टर्स आर assumed to be rational. रैशनल का मतलब आज क्या बोले थे? Risk averse. Risk averse. Risk averse, AVERSE. Risk averse. Full stop. So they will hold diversified portfolios. So they will hold diversified portfolios where unsystematic risk is virtually negligible. Where unsystematic risk is virtually negligible. Unsystematic risk is virtually negligible. Full stop. So the only risk which is priced, ये लैंग्वेज को अवॉइड नहीं कर पा रहा हूं. The only risk which is priced, but ये लैंग्वेज का टोन का मतलब, रिस्क प्राइस्ड हो रहा है इसका मतलब, तो the only risk which is priced, that is rewarded for का मतलब compensated for. ठीक है, the only risk which is priced, that is rewarded for is systematic. अगर आपने अनसिस्टमैटिक रिस्क लिया, आपको उसके बदले एक्स्ट्रा रिटर्न नहीं मिलेगा. प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूं, जिसको लगता है वो वाला पार्ट समझ में नहीं आएगा, वो नीचे में नोट में हिंदी में ये लिख ले जो मैं बोल रहा हूं, हिंदी में नोट. अगर आपने अपना फंड्स एक या दो स्टॉक में लगा दिया, अगर आपने अपना फंड्स एक या दो स्टॉक में लगा दिया तो आपका ह्यूज एक्सपोजर है टू द internal factors of those two companies. आपका ह्यूज एक्सपोजर है to the internal factors of those two companies. In other words, आपका ह्यूज अनसिस्टमैटिक रिस्क है. जिसके बदले आपका ह्यूज अनसिस्टमैटिक रिस्क है, जिसके बदले आपको जरा सा भी एक्स्ट्रा रिटर्न मिलने का एक्सपेक्टेशन नहीं है. जरा सा भी एक्स्ट्रा रिटर्न मिलने का एक्सपेक्टेशन नहीं है. लास्ट में आके लैंग्वेज को संभाला है. जरा सा भी एक्स्ट्रा रिटर्न मिलने का एक्सपेक्टेशन नहीं है. अगर तुम ध्यान दो क्यों संभाला, अगर मैं लिखा था जरा सा भी एक्स्ट्रा रिटर्न नहीं मिलेगा, हाउ कम? तुम एक स्टॉक को ऐसे ही लकी ड्रॉ से बाय कर लो, ऐसे एक स्टॉक को उठा लो कर बाय कर लो. इज इट इम्पॉसिबल कि वो स्टॉक एक साल में 5 टाइम्स हो जाए? पॉसिबल तो है.
कि वो स्टॉक 5 टाइम्स बढ़ जाए, इट इज पॉसिबल, प्रोबेबल कम है, तो इन दैट केस ये मैं नहीं बोल सकता हूँ नहीं मिलेगा, बट आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो एक्सपेक्ट आप तभी कर सकते हो जब आपने हाई सिस्टमैटिक रिस्क का स्टॉक बाय किया। फुल स्टॉप, पैरा चेंज अकॉर्डिंगली RE equal to RF plus systematic risk premium, RE equal to RF plus systematic risk premium, RE equal to RF plus systematic risk premium। तो पहले लिखे थे RE equal to RF plus risk premium, उसके बीच में लंबा चौड़ा ज्ञान हुआ है RE equal to RF plus systematic risk premium। और बहुत कुछ मैंने बोला था बीच में, मार्केट पोर्टफोलियो एग्जिस्ट नहीं करता है, मल्टीपल फैक्टर्स देते हैं इक्विटी में, वो सारा का सारा पोर्शन मैंने लिखाया नहीं है, मतलब वापस से पिकअप होगा कहीं नहीं तुम्हारे माथे में गया हो, दैट इज व्हाट वी हैव टू बेट फॉर, समझ गए? ओके, ठीक। सो हियर इज वेयर वी स्टॉप द क्लास, ठीक है। Once again, those people who have been joined the classes quite early, please start doing derivatives and alternative investments. Those who have joined recently, start doing building block quant foundation, LM1 of QM, LM4 of equity. Of course, it will take time. Nobody is saying एक दिन में 2 दिन. Okay? So, we are possibly meeting tomorrow evening live online for a short class of 1 घंटे, जिसमें हो सकता है मैं एक काम करूंगा, उस क्लास में मैं एक बार एक्सेल पे दिखाऊंगा कि सेंसेक्स और स्टॉक को लेके कैसे बीटा निकालते हैं, वो अपने काम आएगा आगे। तो दैट क्लास आल्सो बिकम्स इंटरेस्टिंग, हल्का, ठीक है। एट द सेम टाइम यू गेट प्रैक्टिकल एक्सपोजर, ठीक है, कल शाम को, ठीक है। ओके बस सर, अदरवाइज फ्राइडे को अपना क्यूएम का क्लास है, क्यूएम का जो चैप्टर चल रहा है अपना, उसका क्लास है फ्राइडे को क्यूएम।